duty, registration, matters relating to properties, appeals, search and seizure, etc. He is a member of Standing Committee on TDS appointed by Income Tax Department, Honorary Treasurer of Remaking of Mumbai Federation, Patron of Estate Agents Association of India and Federation of Accommodation Industry of India, life member of CCI and other clubs and associations. He has authored various books on transfer of flats, HUF and family arrangements, NRI provisions, etc., and published various articles in newspapers and magazines, like Times of India, Accommodation Times, Property Times, Chartered Accountants Journal, Newsletter of Institute of Chartered Accountants, Maharashtra Chamber of Housing Industry, etc., etc. Again, a very long list. He has been a speaker at, say, about 1,000 seminars in India and abroad on topics of public interest like union budget, income tax provisions, etc., and also on recent issues like penny stock, Benami Transactions Act, and assessment builders and developers. In 97, he visited USA as legal advisor to the exhibition India Property 1997 and was keynote speaker at various seminars chaired by High Commission of India in USA at Chicago, Houston, Dallas, New York, New Jersey, etc. He is a recipient of a number of awards from Rotary, Lions, JCs, Giants, and many more organizations. Say, maybe 15 or more. It's again a long list. He is president or chairman of various organizations, and as stated by Pavanji, last but not the least, he was a lion. I think he was first a lion and then all his achievements he got. His achievements are many, and I can keep on talking on and on, but everyone is waiting to hear him. I present the speaker of the day, CA Vimal Punamya. Please welcome him with a massive round of applause. Sir, the platform is all yours now. Vimalji, please. Achi, sir. Thank you. Line Firuja Madam, thanks for your kind word. Welcome, sir. Chief Guest, District Governor Rajkumar Ji Gupta. Second Vice President is Sanjay Ji Churi. First Vice Governor Pratap Ji, of course in absentia, I think he is not joined. My friend CA Pavan Bhai Agarwal, Regional Chairman, Regional Chairperson, Region 1. My friend Carlton Illy sir, CA Kashmira Debu, Kapil Doshi, and friends. For next hour, I am going to talk about the will. What are the provisions of will, nomination, and recent judgment of Supreme Court delivered on 11th of August 2020. Now, friends, in Corona time, even Ratan Tata said earning income in this year is not that important. Then whatever we have, first we must survive, one, and second, whatever we have, how to plan that after our death there is no problem. Now, what is the will actually? Will is the document in which we give directions to the executor how to distribute my wealth after my death. When I'm not there, how to distribute that item, whatever little money may have, maybe tenancy right, ownership right, cash, bank balance, share, jewelry, security, whatever we have. So how to distribute that? Now problem, we will divide this part in two parts. If let us assume that there is no will and person dies, what happened? And if there is a will, what happened and what are the benefits? Now if there is no will, then in normal course, Hindu Succession Act 1956 will apply. When 1956 Act was not there, then there was a law called Indian Succession Act 1925. I will not bother just now with the section and the year, but I will tell you the concept, what it was. When Indian Succession Act 1925 was there, that was used to apply to Hindus and Christians. For Parsi, there is a separate law. For Muslim, there is a separate law. And Muslim again, Shia, Sunni, they are separate law. So we'll just touch upon those laws, but mainly we'll concentrate on the Hindu community. Now, when Hindu Succession Act 1956 came in the picture, that was specifically for the Hindus only.
Now, what happened in case of my death? And I have not made any will. Then what will happen? My properties, whatever property, movable, immovable, whatever is there, that will go to my class 1 relative. Now, who is the class 1 relative? My wife, my son, my daughter, and my mother. All will get equally. If there is no will, this is the system which will be followed. Now, let us assume my mother is not there. Then her share will not go to my brothers. Her share will come to an end and divided to my 3 persons, my wife, son, and daughter. Let us say my wife is also not there. Then son and daughter equally. That was there even before the amendment as per 1956 law only. Now, let us say son was predeceased me and he was not married. Then his son will, a share will also come to an end and he will go to remaining share. Daughter also before marriage, she predeceased me, then her share will also come to an end. But for example, son was there, he was married, and after his death, then son's share, whatever is there, equal share will go to his wife and his children equally. If daughter also predeceased me after marriage, then her share will go to her children equally. That was the law. Now, for example, let us say I have a girlfriend, and from that I have one child also. Girlfriend will not get anything because she is not a legal wife, but the child cannot be illegal. Child is always legitimate. Child cannot be illegitimate child. Wife can be illegitimate. So that unmarried, that child of my friend or girl who is staying with me, or my girlfriend or lady who is staying with me, that child will get at par with my other legal heir. Her right will be there. So if I adopted some children, those children will get the share equally with my other legal heirs. If my son, biologically son, is adopted by somebody else, his right will also come to an end. He will not get anything in my property because he will get there. Now, stepson, for example, I got married second time, and my wife, second wife already have one child from another person, earlier husband. That child will also not get anything. My biological child will get, or adopted child will get, my right of share. Now, let us say the case, if my grandson is there, whether he have right in my property, or my daughter-in-law have right in my property, my individual property, till my son is alive, my grandchildren, my daughter-in-law have no right in my personal property. HUF will talk little separately. So my son is not there, their right will come in the picture. If my daughter is there, her children will have no right in my property, but daughter is not there, then her children will come in the picture. Now let us assume that nobody is there. I have no son, no daughter, no wife, no mother. All are not there or they passed away. Then we have to go under the category B, class 2. So if there is no will, then class 2 will come in the picture. And what is class 2? Everything will go to my father. Mother is already covered in class 1. If my only mother is there and no other person is there, then 100% will go to my mother. But let us say mother is not there, then 100% will go to my father. And nobody will get anything. Now let us assume my father is also passed away. He is also not there. Then my brother, sister will get equally. My brother and sister will get equally. Now, for example, my father is not there, brother is not there, sister is not there. Then my daughter's grandchildren, they are already covered in first category, class 1. But your daughter's children were covered in class 1. But daughter's grandchildren and children of my brother and sister, all will get equally. So siblings, children of the siblings. If nobody is there from that category, then it go to the father's parent. For example, if father got married second time. First was my mother covered in class 1. But father got married second time, then it will go to that mother. Second mother, who is not my mother, biological mother, but my father's wife. So she will get my property, stepmother. If she is also not there, then there is a concept called agnates. What is the agnates? Father's siblings, means my uncle, auntie, it will go to those persons. If they are not there, then their children. If they are not there, then it go to cognates. Now, who is the cognate? Mother side, mother parents, mother siblings in equal share. Now, for example, they are also not there. Then, of course, everything will go to President of India, and President of India will be owner of the property. Now, for example, I don't want to go under the system of Hindu law. I don't want to divide in this fashion. I want to divide in my own way. For example, I have 2 children. One in USA doing very well. Second is handicapped. I have to make provision for that child more.
My daughter may be, say, for example, not doing very well, married daughter, not happy. I want to provide for her. I want to provide more for my wife. Then there is only solution to make a will. Or I want to do something charity out of my money. Like what district governors have also said, we must make provision in our lifetime for the charity. So after our death also our name is there and some good thing happen. So that I have to make will, then it will go as per that. I can give 100% to charity. I can give 100% to my wife. I can give 100% to my particular son or particular daughter and give nothing to everyone. I can give to my girlfriend also. So if I make a will, I can do whatever I want. Otherwise, it will go as per the Hindu law. Now, friends, I told you Christians are covered by Indian Succession Act 1925. Muslims have their law. Parsis have their separate law. But if Hindus are concerned, we are covered by 1956 Act. And when we say Hindu means Jain, Buddhist, Sikh, and Hindu. All are covered part of the Hindu only. Now, will normally or will apply only after death. Let's sir also said just now, a person make a will, so he feel कि मेरा दिन आ गया, end हो गया, now I will go up. ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं जब will बनाता हूँ, तो मैं इसको पहले तो जब तक मैं जिंदा हूँ, everything belong to me only. मेरे डेथ के बाद ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. और मैं आज मैंने समझो एवरीथिंग मैंने मेरे वाइफ को दे दिया और कल मुझे लगता है कि मेरे को वाइफ को नहीं देने का है, मेरे बेटे को देने का है या बेटी को देने का है, तो मैं एवरी डे विल को चेंज भी कर सकता हूं. मेरा लास्ट विल होगा वो प्रिवेल करेगा. उसमें मैंने क्या लिखा है वो विल माना जाएगा. तो इट कैन बी चेंज. नाउ कौन कौन विल बना सकता है? एनी पर्सन ऑफ ए साउंड माइंड एंड मोर देन 18 ईयर ऑफ एज, वो आदमी विल बना सकता है. ये शादीशुदा लेडी भी विल कर सकती है. बिकॉज हिंदू में ऐसा है कि हस्बैंड के पास ही सब कुछ है, वाइफ का नॉर्मली कोई हक रहता नहीं था, ओल्ड ट्रेडिशन थी. पर एज नाउ वाइफ को भी विल बनाने का पूरा हक है. वो भी विल कर सकती है, अपने बेटे को देवे, बेटी को देवे, अपने माँ बाप को देवे, अपने भाई बहन को देवे, उसकी मर्जी है, वो भी विल कर सकती है. कोई आदमी सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, लेकिन समझ सकता है वो क्या कर रहा है. वो विल बनाने का मीनिंग समझ रहा है कि उसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो आदमी भी विल बना सकता है. ए पर्सन जो बिल्कुल पागल है, अनसाउंड माइंड का है, वो विल नहीं कर सकता है. लेकिन उसको पागलपन का दौरा कभी कभी आता है, और जब भी वो साउंड माइंड में है, जब भी समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, और वो पीरियड में विल बनाएगा, तो वो विल बना सकता है. लेकिन कल ये प्रूव होगा कि उसने पागलपन के दौरे में विल बनाया था, तो विल इनवैलिड हो जाएगी. लेकिन ये प्रूव होगा कि जब विल बनाया था वो समझ रहा था, समझ के साइन किया है, तो वो वैलिड रहेगी. इसके लिए बेटर है कि ऐसी विल को जहां पे आदमी अनसाउंड माइंड का हो, तो उसको रजिस्टर भी कर लेना चाहिए, कि जो लीगली जरूरत नहीं है, पर बेटर है कर लेना चाहिए. आदमी जब भी बहुत खुश होवे कि बहुत अच्छा उसको बड़ा लॉटरी लग गया, या बहुत अच्छा हो गया, या अभी हॉस्पिटल से छूट गया, बीमारी सब खत्म हो गई, या कोर्ट में बड़ा केस जीत गया, ऐसे टाइम में विल नहीं बनाना चाहिए. जब भी आप बहुत खुश है या बहुत दुखी है, अभी घर में किसी की डेथ हो गई, ऐसे टाइम पे विल बनाने का डिसीजन नहीं होना चाहिए, कि वो आदमी गलती कर सकता है. कौन आदमी विल नहीं कर सकता है? एक आदमी जो ड्रिंक किया हुआ है, उसका दिमाग में ये मालूम नहीं वो कर क्या रहा है. और जैसा अभी राहुल गांधी जी ने कहा था 15 मिनट में हम चाइना को ऐसा उड़ा देंगे, तो अब मतलब कहने का मतलब ऐसी जो आदमी इस सिचुएशन में कोई आदमी बात करता है, तो वो टाइम भी वो आदमी भी विल अनसाउंड माइंड गिना जाएगा, और विल उसकी बनाई हुई वैलिड नहीं रहेगी. माइनर बिलो 18 ईयर्स का बच्चा, वो भी विल नहीं कर सकता है. 21 साल के 20-18 साल के बाद वाला भी कर सकता है. कोई आदमी ऑलरेडी कन्विक्टेड हो गया है, लाइक दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, लंगड़ा, चिकना, ऐसी बॉम्बे में 30 गैंग थी पहले, अभी कम हो गई है. ऐसे आदमी जिसको कन्विक्शन हो चुका है, वैसा आदमी भी विल नहीं बना सकता है. अगर कोई मैं मंदिर में ट्रस्टी हूं या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्ट हूं, तो मैं ट्रस्ट का प्रॉपर्टी का विल भी नहीं बना सकता हूं. भले मेरे सिग्नेचर में हजारों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पर मैं विल उसका नहीं कर सकता हूं. मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, प्रॉपर्टी फर्म की है, मेरा उसमें 25, 30, 40, 50% शेयर है, तो मैं फर्म की प्रॉपर्टी का भी विल नहीं कर सकता हूं. मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री में मैं डायरेक्टर हूं, तो भी मैं उस प्रॉपर्टी का जो मेरे सिग्नेचर में खरीदता हूं, सिग्नेचर में बेचता हूं, मेरे सिग्नेचर में hundreds of crore के पेमेंट हो रहे हैं, तो भी मैं रिलायंस इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी का विल नहीं कर सकता हूं. मेरी HUF है, विमल पुनिया HUF, उधर मैं करता हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं ही काम कर रहा हूं पूरा, लेकिन वो भी प्रॉपर्टी पूरे फैमिली की है. मेरा वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी सब उसके अंदर है, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी उसके मेंबर्स है. दे आर नॉट को पार्टनर बट दे आर मेंबर. तो वो प्रॉपर्टी का भी मैं विल नहीं कर सकता हूं. मैं खाली इतना लिख सकता हूं कि जब भी HUF का पार्टीशन होगा और मुझे को शेयर कुछ मिलेगा,
अभी मेरे मरने के बाद पार्टीशन होगा तो मेरे को बात ही खत्म हो जाएगी। और अभी मेरे को पार्टीशन मेरे लाइफ टाइम में हो गया और मेरे को कुछ पैसा मिल गया तो मेरी एसेट बढ़ जाएगी, तो वो पार्ट का मैं विल कर सकता हूँ। तो आई कैन मेक विल ऑफ माई ओन प्रॉपर्टी, आई कैन नॉट मेक विल ऑफ समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी। समझो मेरे 3 सन है, लेटर से 1 सन है, 1 डॉटर है, 1 वाइफ है। मैं ऐसा बोलता हूँ चर्च के स्टेशन मेरे बेटे को दे दिया, वीटी मेरी बेटी को दे दिया, एयरपोर्ट मेरे वाइफ को दे दिया। अभी तीनों मेरे है भी नहीं, तो मेरा ऐसा कुछ विल बनाया हुआ तो इनवैलिड होगा। ऐसा विल मैं मेरी प्रॉपर्टी का विल खाली कर सकता हूँ। शॉर्ट में मैं कहूं कि जब भी आप विल बनावे, एकदम ठंडा दिमाग से, आइस ऑन ए हेड, सुगर ऑन ए टंग, एकदम मीठा जवाब रखिए और लव एट हार्ट। जब भी आप किसी से झगड़ा करके आए तो ऐसा टाइम पे नहीं बनना चाहिए। आइस एट हेड, सुगर एट टंग एंड लव एट हार्ट। ये सिचुएशन आपको होवे, आपको लगे एवरीथिंग इज नॉर्मल, वो टाइम विल बनाने का सोचना चाहिए। अभी भी मेरे एक बेटे से झगड़ा हो गया और मैं दूसरे बेटे को सब कुछ दे देता हूं, तो ऐसा सिचुएशन में विल बनाना नहीं चाहिए। और वो सिचुएशन में विल को चैलेंज भी किया जा सकता है कि जब मेरे फादर ने विल किया था, ही वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि आदमी विल बना के किसी को बताता नहीं है, बहुत बता के कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। तो हमेशा इसका कंफ्यूजन रहता है लीगल एयर्स में कि विल बनाया था कि नहीं बनाया था। तो विल बनने के बाद मिलना भी चाहिए और मालूम भी होना चाहिए फैमिली मेंबर को कि विल बनाया था। आप अपने फ्रेंड को, एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को या सोसाइटी के सेक्रेटरी को बता के रखो भी मैंने विल बनाया और मैंने इस जगह पे रखा है, तो बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए। अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आदमी ढूंढते हैं, उनको विल मिलता नहीं है। कोई एडवोकेट के पास रखा है, किसी को घर में मालूम नहीं है, एडवोकेट को मालूम नहीं कि उसकी डेथ हो गई, और फिर हिंदू लॉ के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं और बाद में वो विल निकलती है, तो बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। विल बहुत पर्सनल डॉक्यूमेंट है, आपको किसको बताना है तो बताओ, आपको सीक्रेट रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छुपा के अपने पास रखो किधर भी, पर मरने के बाद मिले ऐसी सिचुएशन में रखो। माइनर चिल्ड्रन है, समझो मेरे बच्चे माइनर है, तो मैं उसमें ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता हूं। पहले तो मैं कह सकता हूं मेरी वाइफ इसमें ट्रस्टी होगी, मेरी वाइफ इसको मैनेज करेगी, और समझो कि मेरी वाइफ की डेथ मेरे पहले हो गई या मेरे डेथ के बाद मेरी वाइफ की डेथ हो गई, तो कौन संभालेगा उसको? तो वो ट्रस्टी भी मैं माइनर के लिए बना सकता हूँ। ट्रस्ट डीड भी बना सकता हूँ विल के अंदर कि ये तरीके से मेरे माइनर का केयर करेंगे, ऐसे ऐसे पैसा बैंक में रहेंगे, स्पेकुलेशन नहीं कर सकेंगे, या जो भी मुझे रखने का है। एक ट्रस्ट, पहले तो बहुत सारे ट्रस्ट बन सकते थे, लेकिन पिछले 15 साल पहले अमेंडमेंट हुआ था, एक विल में एक ट्रस्ट बना सकते हैं जिसका इंडिविजुअल रेट ऑफ टैक्स लगेगा और माइनर को सब अपना हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी। अब हैंडी के चाइल्ड जो अपना केयर नहीं कर सकता है, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, उसके लिए भी एक ट्रस्ट बना सकते हैं, या आप विल में उसका प्रोविजन कर सकते हैं और कम ज्यादा जो आपको रखना है वैसा पैसा उसके प्रोविजन अपन अंदर कर सकते हैं। अगर मेरे 2 बेटे हैं, एक बहुत पैसे वाला है और एक पैसे वाला नहीं है, और जो पैसे वाला नहीं है मुझे उसको ज्यादा प्रोवाइड करना है, तो मैं भी वो कर सकता हूँ, लेकिन विल बना के ही कर सकता हूँ, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने विल नहीं बनाया और मेरा बच्चा जो क्रिमिनल टाइप का आदमी है, साल में 6 महीना जेल में ही रहता है, वो भी जेल से छूट के आगे मेरी वाइफ से और बच्चों से पैसा मांगेगा, और उनको अगर विल नहीं किया है तो उनको उसका शेयर देना पड़ेगा। मेरी वाइफ है, समझो वो एडल्ट्री के चक्कर में हमारा केस चल रहा है, अब मुझे उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करना है, लेकिन अगर मैंने विल नहीं किया है तो वो आके पूरा उसमें क्लेम कर सकती है। इसलिए विल बनाने के बहुत सारे फायदे भी है। डिसएडवांटेज एक ही है, अभी भी अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने कहा था कि आदमी जब विल बना देता है तो उसको एक मन में साइकोलॉजिकली बात हो जाती है कि अभी मैंने विल बना दिया है, अभी मेरे को ऊपर जाने का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर जाने का तो सिस्टम ऐसा है कि 30 साल का बच्चा भी चला जावे ऊपर और 90 साल का आदमी भी जिंदा रहे। इसके लिए विल बनाने से ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बना के आपने फैमिली के लिए सेफ्टी कर दी है कि अचानक कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी अपन नहीं रहे, प्लेन का क्रैश हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे बच्चों का या वाइफ का या जो भी मैं मेरे दिल में क्या इच्छा है वो मेरा पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो खाली डॉक्यूमेंट है, और मैं वो कभी भी चेंज भी वापस कर सकता हूं उसको, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आर्मी के जो ऑफिसर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और वार चल रहा है और उसके टाइम उसको विल बनाने की इच्छा है, लेकिन वार चल रहा है, उसको मालूम है 15 मिनट में उसका एंड आ गया है, या अभी उसका हैंडीकैप हो जाएगा, या बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, या वो सराउंडेड हो गया है दूसरे, तो वो आदमी ओरल विल भी कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 सोल्जर्स, और 7 दिन के अंदर वो 2 सोल्जर उसका एक डिक्लेरेशन कर लेंगे, तो उसका अंदर डिक्लेरेशन के हिसाब से वो विल का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सोल्जर भी उसका विल का अपना ओरल विल कर सकता है। अदरवाइज हिंदू लॉ में ओरल विल परमिटेड नहीं है। थोड़ा 1-2 एक्सेप्शन है, वो जो आपको मैं लेटर बताऊंगा कि हिंदू आदमी मूवेबल प्रॉपर्टी का ओरल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ज्वेलरी है तो अपना मरने के पहले सबको बांट दिया अपने हाथ से, तो वो कर सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओरल विल नहीं कर सकता है।
खाली लाइफ टाइम में गिफ्ट करेगा तो ही उसका ओरल विल चालू रहेगा। मुस्लिम कैन मेक ए ओरल विल, मरने के पहले एक मुस्लिम आदमी ओरल विल करता है और 2 आदमियों के सामने, और वो डिक्लेरेशन देते हैं तो उसका ओरल विल चलेगा। लेकिन मुस्लिम आदमी 1/3 प्रॉपर्टी का ही विल कर सकता है, 2/3 तो उसका मुस्लिम लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर मुस्लिम आदमी कहेगा कि मैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में मैं विल बना रहा हूं और पहला लाइन वो लिखेगा, तो देन ही नीड नॉट फॉलो द मुस्लिम लॉ, ही कैन मेक व्हाटएवर ही वांट। सिमिलर पारसी आदमी भी बोलेगा मैंने ये बिल बनाया मेरा इंडियन सक्सेशन एक्ट में, तो ही नीड नॉट फॉलो द पारसी लॉ, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट व्हाटएवर वे ही वांट। मेरा मालूम है, मेरे पारसी क्लाइंट था, हस्बैंड का विल में दोनों के पास करीब 15-15 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। हस्बैंड ने विल बनाया और पहले वाइफ की डेथ पहले हो गई, और विल हमने जब भी खोला तो वाडिया गांधी सॉलिसिटर, मैं और एक दूसरा पारसी आदमी, हम 3 लोग ट्रस्टी थे उसके। उसने 25% अपने सर्वेंट को दिया, 25% ड्राइवर को दिया, 25% फुल टाइम कारपेंटर था उसको दिया, और 25% एक एनिमल हॉस्पिटल है लोअर परेल में, उसको चैरिटी दी। जबकि वो लेडी की ये चौथी शादी थी। पहली 3 शादी में उसको एक बच्चा भी था, एक सरदार जी था, एक सिंधी फैमिली थी, एक क्रिश्चियन थी, और ये लास्ट में पारसी थे। उस आदमी का भी हमने विल बनाया, खोला बाद में, उसकी डेथ भी 2 साल पहले हुई एट द एज ऑफ 98। उसका भी सेम था, उसकी भी चौथी शादी थी, वो लेडी की भी चौथी शादी थी, उस आदमी की भी चौथी शादी थी। आदमी का भी पहले 3 शादी से एक बच्चा था, एक उसमें क्रिश्चियन था, एक मुस्लिम था, एक जूइस करके कोई था, और लास्ट में पारसी लेडी थी। लास्ट शादी से बच्चा नहीं था। लेडी ने पहले अपना 3 शादी के तीनों बच्चों को कुछ भी नहीं दिया, हस्बैंड भी कुछ नहीं दिया, और हस्बैंड का जब हमने विल खोला तो सेम सिस्टम था, ये 25% कारपेंटर, सर्वेंट, ड्राइवर एंड एनिमल हॉस्पिटल। सो मेरा कहने का मतलब है कि विल आप अपनी मर्जी से कैसा भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई बाइंडिंग नहीं है। विल हमेशा सिंपल पेपर पे आप कर सकते हैं, कोई स्टाम्प पेपर जरूरी नहीं है। और कोई आदमी को कंफर्ट लगता है कि वो मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख दिया, तो आप स्टाम्प पेपर भी करो तो गुनाह नहीं है, लेकिन वो स्टाम्प पेपर प्लेन पेपर जैसा ही पकड़ा जाएगा। विल को हैंड राइटिंग आपका बहुत अच्छा है, तो टाइप करने का भी जरूरत नहीं है, आप हैंड राइटिंग में अच्छा हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मैंने लिखा हुआ मैं भी नहीं पढ़ सकता हूं, तो वो सिचुएशन में टाइप किया होगा तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा विल बनाने का सिस्टम क्या है? अभी विल बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे सब रिलेटिव का नाम लिख लेना चाहिए। मैं मेरा जैसे रिलेटिव में कौन आएगा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी इतना लिखा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड चिल्ड्रन को ऐड करना तो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेटा, वाइफ और बेटी, ये 3 नाम सबके लिखने चाहिए, सबका एज लिखना चाहिए, इनके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है वो आगे लिख देना चाहिए। इसके बाद मेरे पास में क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, फ्लैट, ऑफिस, इंडस्ट्रियल गाला, शॉप, जो भी मेरे प्लॉट, ये सबकी मेरे को लिस्ट बना लेनी चाहिए। और लिस्ट में इतना क्लियर करना चाहिए कि कोई भी मेरा एग्जीक्यूटर मेरे मरने के बाद उस विल के अंदर जो एड्रेस लिखा है उस जगह पे पहुंच सके, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। मैं लिखूंगा माई फ्लैट इन मुंबई, अभी मुंबई का कौन सा फ्लैट, एग्जीक्यूटर बेचारा कहां ढूंढने को जाएगा मेरा फ्लैट, तो मैं लिखूंगा ये फ्लैट नंबर, ये फ्लोर, ये बिल्डिंग का नाम, ये रोड का नाम, और ये बॉम्बे नंबर, ये जगह पे मेरा फ्लैट है, तो वो आप पहुंच सकता है। तो मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी का सब डिटेल बनाना पड़ेगा। इसके बाद मेरी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, आज मेरे पास बैंक में एफडीआर है समझो 5 करोड़ रुपए का, कल 10 करोड़ भी हो सकता है और 1 करोड़ भी रह सकता है। तो मैं खाली ऐसा लिखूंगा, एफडीआर विद बैंक ऑफ इंडिया, एफडीआर विद बैंक ऑफ बड़ौदा, सेविंग अकाउंट विद सोन सो बैंक, लॉकर इन माई सोन सो बैंक, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनीज, ज्वेलरी, कैश, मतलब आइटम को आइडेंटिफाई कर दो आप, उसका अमाउंट कितना वो लिखने की जरूरत नहीं है कि वो तो बढ़ेगा घटेगा मरने के लिए। तो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में आइटम दे दिया मैंने, मूवेबल प्रॉपर्टी में आइटम का डिस्क्रिप्शन दे दिया, और इसके बाद में मैं किसको क्या देना चाहता हूं वो लिखना पड़ेगा मुझे। रिलेटिव आ गए, मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद मुझे क्या किसको देने का है वो मुझे लिखना चाहिए। अभी समझो मुझे किसी को ज्यादा देने का है, मेरा एक बेटा बहुत पैसा है, वो अलग रहता है घर से, उसको मैंने फ्लैट ऑफिस लेके दे दिया है, और बाकी दूसरा बेटा मेरे साथ देता है उसको देने का है, तो मुझे बिल में जिसको समझो ज्यादा दिया या किसी को नहीं दिया या कम दिया वो मुझे क्लेरिफाई कर देना चाहिए बिल में, तो झगड़े का काम खत्म हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि ये बेटे को मैंने सेपरेट पहले ही हो चुका है, वो अलग रहता है, इसके लिए मैं उसका प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, या उसके बच्चों को मैं कम दे रहा हूँ, और जो बेटा मेरे साथ रह रहा है, जो मेरी केयर कर रहा है, मैं मेजर पार्ट उसको दे रहा हूँ। सिमिलर मेरे बेटी की शादी पे मैंने काफी खर्चा कर दिया है, उसको ज्वेलरी जो देना था सब कुछ दे दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ कि बेटी इज वेल सेटल्ड, आई हैव ऑलरेडी गिवन एट द टाइम ऑफ आवर वेडिंग, सो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग फॉर हर, और आई एम प्रोवाइडिंग लेस। तो किसी को आप ज्यादा दे रहे हैं या आप कम दे रहे हैं वो आपको
उधर आइडेंटिफाई कर देना चाहिए, तो झगड़े का काम आपका खत्म हो जाएगा। फिर अब जो विल बना रहा है उसको और एक क्लॉज ये भी डालना चाहिए कि मेरा फ्यूचर में भी कोई एसेट आ सकता है, मूवेबल या इमूवेबल, तो उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर मैं ये एसेट में से फ्यूचर में कुछ बेच देता हूं मंडे के पहले, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो आपका कोई एसेट कम हो गया या बढ़ गया तो वो भी इफेक्ट आएगा। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो वो पोर्शन जो बढ़ा वो हिंदू लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैंने लिख दिया कि फ्यूचर में जो भी बढ़ेगा मेरी वाइफ को जाएगा, या बेटे को जाएगा, या बेटी को जाएगा, या चैरिटी में जाएगा, या मेरे फ्रेंड को जाएगा, तो वो वैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरे को विल बनाने वाले को हर पेज पे साइन करना है। इनिशियल नहीं करके फुल साइन किया तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज इनिशियल किया तो भी चलेगा। लास्ट पेज पे पूरा साइन करना है। आजकल हम लोग करते हैं थंब इंप्रेशन भी ले लेते हैं उस आदमी का और छोटा फोटो भी लगा देते हैं। उसके अलावा 2 आदमी का विटनेस होना भी जरूरी है। अगर ये विटनेस आपने 2 का नहीं लिया तो आपका विल इनवैलिड है। मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली हमारे में केस आया था। पुणे की एक पार्टी थी, उसके पास 50,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। उस आदमी ने विल भी बना दिया, साइन भी कर दिया, लेकिन 2 विटनेस का साइन नहीं लिया था। उसके लिए उसका विल इनवैलिड हो गया। उसकी एक वाइफ थी, उसे एक बेटा था और 3 बेटियां थी। एक दूसरी लेडी थी जो उसके साथ रहती थी, उसकी भी एक बेटी थी। तो उसने अपने हिसाब से 60% एक फैमिली को, 40% दूसरी फैमिली को बांट दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, विटनेस नहीं था। अभी 2 विटनेस नहीं लेने से पूरा विल इनवैलिड हो गया। और हुआ क्या, पहली वाली वाइफ के बच्चे बोलने लगे भी हम 4 हैं, इस माँ का तो उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी और ये माँ का कोई हक है नहीं बिकॉज शी इज नॉट मैरिड, और ये डॉटर का हक है, तो आपका हक खाली 20% है, 40% आपको नहीं मिलेगा। और वो एक झगड़ा चालू हो गया। तो कहने का मतलब है कि 2 विटनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 विटनेस का आप उधर आईडी प्रूफ ही साथ में लगा दो, फोटो आईडी बिल के साथ स्टेपल कर दो, और वो आदमी विटनेस अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर लिखेगा, एड्रेस लिखेगा और साइन करेगा। विटनेस ये जरूर जानना जरूरी नहीं है कि आपने विल में क्या किया है, वो ये वेरीफाई कर रहा है कि इस आदमी ने मेरे सामने विल में साइन किया है। तो वो विटनेस का सिग्नेचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कोई लिटिगेशन हो गया तो विटनेस को वहां पे कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना भी पड़ सकता है। और बेटर है विटनेस थोड़े यंग हो। अब मरना तो किसका भी लिखा हुआ अलग बात है, लेकिन वो यंग होंगे तो एटलीस्ट आपके डेथ के टाइम ज्यादा करके रहेंगे। एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। मैं तो लिख दिया ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, इसको जाएगा, लेकिन मैं तो वो दिन रहूंगा नहीं, तो मेरी बात करेगा कौन, पीछे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन। तो उसके लिए मुझे एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, और एग्जीक्यूटर मेरी प्रॉपर्टी का चार्ज लेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एग्जीक्यूटर की डेथ मेरे डेथ के पहले हो गई, तो एग्जीक्यूटर को भी आपको थोड़ा यंग लेना पड़ेगा। और एग्जीक्यूटर अगर बाद में कोऑपरेट नहीं करता है या एग्जीक्यूटर एक्ट नहीं करता है, इसलिए उसका कंसेंट भी लेना चाहिए कि मेरी विल में तेरे को मैं एग्जीक्यूटर बना रहा हूं, तो ये काम करेगा क्या। तो बोलेगा हाँ मैं करूंगा, तो बढ़िया है। अदरवाइज आप सॉलिसिटर को भी एग्जीक्यूटर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट आपका कॉन्फिडेंस का, उसको कर सकते हैं। और बहुत सारे राजा महाराजा तो बैंकों को एग्जीक्यूटर कर बना देते हैं, बैंक को बोर्डा विल में एग्जीक्यूटर, और बैंक का कंसेंट लेके बिल के साथ स्टेबल कर देते हैं। लेकिन वो कॉस्टली अफेयर हो जाता है, ये एवरी टाइम वन हैज टू गो टू द बैंक टू टेक स्मॉल मनी। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस का आदमी को एग्जीक्यूटर बनाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का कंसेंट भी ले लेना चाहिए। और अदरवाइज एग्जीक्यूटिव नहीं अपॉइंट किया तो आपके जितने लीगल एयर है, जिसको आपने प्रॉपर्टी बांटी है, सब एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे, और उनके बाद में वो आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं। इसलिए 1 या 2 एग्जीक्यूटिव बनाना जरूरी है कि ये आदमी मेरा एग्जीक्यूटिव होगा, और कल इसका डेथ हो गया तो ये एग्जीक्यूटिव होगा। अगर आपने एवरीथिंग वाइफ को दिया है तो बेस्ट है वाइफ को एग्जीक्यूटिव बना दो, एवरीथिंग बेटे को दिया है बेटे को बना दो। लेकिन आपके कॉन्फिडेंस का होना चाहिए कि वो आदमी आपका जो विश है वो इंप्लीमेंट करेगा, वो चीटिंग नहीं करेगा, वो पैसा खा के नहीं जाएगा। अभी मैंने आपको बताया विल कितने तरह की होती है, प्रिविलेज विल, अनप्रिविलेज विल। प्रिविलेज विल का मतलब क्या होता है, ओरल विल, जो आर्मी के ऑफिसर, मैंने आपको बताया आर्मी के अंदर अलाउड है, नेवी, एयरफोर्स, वार के टाइम पे, नॉट अदरवाइज। और अनप्रिविलेज मतलब अपन जो रिटर्न विल बनाते हैं वो नॉर्मली होगी। मुस्लिम को प्रिविलेज विल अलाउड है अगर वो डिक्लेरेशन करेगा। एंड विल के अंदर अगर मैं कोई कंडीशन डालता हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरे बेटे को मिलेगी प्रोवाइडेड वो मेरे वाइफ का केयर करेगा, ये प्रॉपर्टी मेरे वाइफ को जाएगी प्रोवाइडेड वो मदर की केयर करेगी, तो ऐसी कंडीशन वैलिड है। अगर मैं ये कंडीशन डालता हूं कि ये विल के अंदर इतना रुपया मैं मिस्टर ए को दूंगा प्रोवाइडेड वो मिस्टर बी का मर्डर करेगा, ऐसी इलीगल कंडीशन की वैलिडिटी नहीं है। लीगल कंडीशन में डाल सकता हूं, जो व्यवहार से कंडीशन होती है वो सब इसमें वैलिड रहेगी। इसके अलावा विल, ज्वाइंट विल भी हो सकती है, मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में विल करते हैं,
और उसमें हम क्या करते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के कंट्रोल में रहेगी, लेकिन वाइफ को खाली यूज करने का हक रहेगा, मालिक नहीं हो। और वाइफ लिखेगी मेरे हस्बैंड को यूज करने का राइट रहेगा, मालिक नहीं होंगे। तो दोनों की डेथ होने के बाद ही वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसको कहते हैं जॉइंट विल। एक होता है साथ में विल बनाना, हस्बैंड वाइफ दोनों बनाते हैं साथ में एक ही विल, जो एडवाइजेबल नहीं है। हस्बैंड अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वाइफ अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मेरे वाइफ के मरने के बाद वाइफ की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नाउ डे सबसे कॉमन विल है म्यूचुअल विल। म्यूचुअल विल में क्या होगा, मैं मेरी प्रॉपर्टी 100% मेरी वाइफ को दे देता हूं, मेरी वाइफ के विल में 100% वो मेरे को दे देती है, और मैं लिखता हूं कि अगर मेरी वाइफ उस दिन नहीं रही तो मेरे बच्चों को या जो भी मेरे को डायरेक्शन देना इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। मेरी वाइफ 100% मेरे को देगी और लिखेगी अगर मैं नहीं रहा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल विल। डुप्लीकेट विल, एक विल का मैं 5-6 कॉपी कर दूं तो किधर न किधर कुछ तो मिले। आजकल जब हमने विल रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को एक सीडी मिलती है, और सीडी से आप प्रिंट आउट जितने चाहे उतना निकाल सकते हैं और वो आप रख सकते हैं। तो विल उसको कहते हैं डुप्लीकेट विल। विल को आप एस्क्रो में भी रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं, और होल आइडिया है कि मरने के बाद मिलना चाहिए। बिकॉज मेरे यहाँ एक बार केस हुआ था, एक आदमी ने विल बनाया था, मेरे यहाँ रखा, जब उसकी डेथ हुई मुझे मालूम नहीं था, फिर उसके बेटे की भी विल मेरे इधर ही पड़ी थी। जब बेटे की डेथ हुई तो उसके बच्चों को मालूम था, तो वो आया मेरे यहाँ पे, मैंने लॉकर में जाके देखा तो उसके फादर की विल भी मेरे यहाँ थी और उसके दादा की विल भी मेरे यहाँ ही मिली। तो आपको एडवोकेट को, घर वालों को बताना भी चाहिए कि आपका विल यहाँ पे पड़ा है। फिर इसके बाद बोलते हैं कंकरेंट विल। वो क्या होती है, आज मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। अगर मैंने एक विल में सब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और मैं बॉम्बे में जब प्रोबेट का अप्लाई करूंगा तो मुझे वो विल हाईकोर्ट में देनी पड़ती है, और वो परमानेंट हाईकोर्ट में ही रहती है। हाईकोर्ट उसको स्टाम्प पेपर पे टाइप करके जस्ट साइन करके आप लोग को वापस देता है, उसको कहते हैं प्रोबेट। तो अगर मेरी फॉरेन में प्रॉपर्टी और मेरे को फॉरेन में प्रोबेट का अप्लाई करना है तो विल तो इधर चली गई बॉम्बे हाईकोर्ट में, मेरे को मिलने वाली नहीं है, तो मैं फॉरेन में क्या फाइल करूंगा। इसके लिए नॉर्मली एडवाइजेबल है कि इंडिया की प्रॉपर्टी का मैं एक विल बनाऊं और फॉरेन की प्रॉपर्टी का एक विल बना दूं। और मेरा हर कंट्री में बहुत बहुत प्रॉपर्टियां हैं तो हर कंट्री का मैं अलग अलग विल भी बना सकता हूं। लेकिन लीगली मैंने अलग अलग विल बनाया है हर कंट्री का। फॉरेन की एसेट का एक विल बनाया है, इंडिया का और फॉरेन का सब मिलके एक विल बनाया है, ऑल आर वैलिड। और उसके लिए थोड़ा का पेपर बढ़ जाएगा लेकिन वो वैलिड है, पर एडवाइजेबल है। इंडियन प्रॉपर्टी का एक विल, फॉरेन प्रॉपर्टी का एक विल। एक होता है बोगस विल। बोगस विल मींस क्या, साइन फैब्रिकेट किया हुआ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट को बोला कि मेरा विल कर मेरे फेवर में, नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, और पेशेंट में साइन किया है। अंडरवर्ल्ड का आदमी आपको रिवॉल्वर की गोली के ऊपर आपका साइन लेके जाता है और बाद में आप एफिडेविट नहीं किया 7 दिन में, और बाद में मालूम पड़ा कि ये बोगस विल थी, तो ये ऐसा बोगस विल हो जाता है। आपका जज के एडवोकेट केस आर्ग्यू कर रहा है, सडनली वो कहता है विल मेरे को फीस नहीं दिया, मेरा विल मेरे फेवर में कर, तो केस तेरा आर्ग्यू नहीं करूंगा। एक लेडी गर्लफ्रेंड आपकी बाकी बोलती है कि मैं भी सुसाइड करूंगी, मेरे फेवर में विल करो। या डॉटर इन लॉ बोलती है मैं खिड़की में भी छलांग मार रही हूँ, मेरे को विल करो। तो ऐसे विल के अंदर आप 7 दिन में डिक्लेरेशन करेंगे कि ये विल मैंने प्रेशर में बनाई है, ये वैलिड विल नहीं है और मैं इस विल को रिवोक करता हूं, तो 100% आप कर सकते हैं। ऐसी विल को बोगस विल कहते हैं। होलोग्राफ विल उसको क्या कहते हैं, जो अपन हैंड राइटिंग में बनाते हैं तो उसको होलोग्राफ विल बनाते हैं। विल बनाने के टाइम अगर हाथ से लिखो या टाइप करो, लेफ्ट राइट में 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ दो, ऊपर नीचे 2-2 इंच का 2-2-3-3 ऊपर 2 इंच कम से कम, नीचे 3 इंच का मार्जिन छोड़ो। तो कल आपको रजिस्टर भी करना है तो वहां पे टपाटपी लगाने के लिए इजी हो जाएगा। तो विल में थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि परमानेंट डॉक्यूमेंट रहता है, तो अच्छा हैंडराइटिंग से अच्छा पेपर बना के अपने पास रखना चाहिए। आप एडवोकेट और सीए की सलाह करेंगे तो भी ठीक है, अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है तो नहीं करके अपने थोड़ा बहुत ध्यान रखे तो भी ठीक है। और मैंने पवन भाई को एक नोट भेजा 15-20 पेज का, उसमें विल का फॉर्मेट भी दिया मैंने, तो वहां से आप ले सकते हैं, या मेरे को कोई भी मेल डालेंगे तो मैं भी आपको भेजूंगा। इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जिसको मैंने प्रॉपर्टियां दी है क्या मैं उसको एग्जीक्यूटर बना सकता हूं? यस, 100%। जिसको आप एग्जीक्यूटर बनाएंगे और उसको प्रॉपर्टी दी है तो ये और सिंपल हो गया कि उसी को ही प्रॉपर्टी लेने की है। जहां पे सोल एग्जीक्यूटर है, हर एवरीथिंग मैंने मेरी वाइफ को दे दिया है, तो सबसे बेस्ट है कि वाइफ को मैं एग्जीक्यूटर बना दूं। इसके अलावा एग्जीक्यूटर विल परफॉर्म, उसको लेने का यार वही लेगा। पारसी लोगों में अभी विटनेस कौन हो सकता है? पारसी के अंदर आपने किसी को प्रॉपर्टी दी है, उस आदमी को आप विटनेस नहीं कर सकते। हिंदू लॉ में आपने 100% प्रॉपर्टी एक आदमी को दे दी है तो उसको एग्जीक्यूटर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन थोड़ा पार्ट दिया है तो वो एग्जीक्यूटर बनाना चाहिए, विटनेस नहीं बनाना चाहिए। आपने थोड़ा प्रॉपर्टी दिया है तो विटनेस बनेगा तो भी चलेगा। और क्रिश्चियन लॉ में आप एग्जीक्यूटर जिसको पैसा दिया है उसको आप नहीं बना सकते।
और मुस्लिम लॉ में तो विटनेस एग्जीक्यूटर नहीं, सॉरी मैं विटनेस के लिए एग्जीक्यूटर बोल रहा हूँ, एग्जीक्यूटर किसको भी बना सकते हैं। विटनेस हिंदू लॉ के अंदर जिसको थोड़ा पैसा दिया उसको विटनेस ले सकते हैं, ज्यादा पैसा लिया उसको विटनेस में नहीं लेना चाहिए। मुस्लिम लॉ में विटनेस की जरूरत नहीं है। पारसी में अगर आपने कुछ पैसा दिया है तो उसको विटनेस ले भी नहीं सकते। और क्रिश्चियन लॉ के अंदर जो हिंदू लॉ में है सेम अप्लाई टू क्रिश्चियन लॉ। इसके अलावा एक होता है कोडिसाइल। अब कोडिसाइल क्या होता है? अगर मेरे पास प्रॉपर्टियां हैं, मैंने कुछ प्रॉपर्टियां बेच दी, कुछ प्रॉब्लम आई फाइनेंशियली, या मैंने बहुत सारी और प्रॉपर्टियां खरीद ली, तो मैं या तो ओरिजिनल विल को चेंज करूं या मैं उसको क्या करूं, एक अमेंडमेंट कर दूं विल में। तो पहले वाली विल रहेगी और मैं कहूंगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेच दी है, तो ये मेंबरों से ये प्रॉपर्टी इनको नहीं मिलेगी और इनको ये दूसरी चीज मिलेगी। या मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये किसको जाएगा, और मेरे को ओरिजिनल बिल में अमेंडमेंट करना है। मैंने पहले वाइफ का प्रोविजन किया था, अभी वाइफ समझो उसकी डेथ हो गई, तो मेरे को वो पैसे किसको देने का है, बेटे को देना है, बेटी को देना है, चैरिटी करना है, फ्रेंड को देना है, वो मैं डाल सकता हूं। तो उसको कहते हैं कोडिसाइल। जो विल बनाने का सिस्टम है सेम सिस्टम कोडिसाइल का है। कोडिसाइल में भी मेरा नाम एड्रेस आएगा और मैं जूनी बिल का रेफरेंस दूंगा या जूनी बिल को इसको स्टेपल करूंगा साथ में, ये बिल मैंने इस दिन बनाया था, अभी मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं ऐसा ऐसा। और अमेंडमेंट के अंदर कोडिसाइल के अंदर मैं लिखूंगा कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी और 2 विटनेस का साइन लूंगा। सेम सिस्टम जो विल का है सेम सिस्टम यहाँ फॉलो होगा। अगर मैंने विल को रजिस्टर किया है तो एडवाइजेबल है कोडिसाइल को भी रजिस्टर कर लेना चाहिए। लेकिन समझो मैंने विल तो रजिस्टर किया है और कोडिसाइल को रजिस्टर नहीं किया है, तो रजिस्ट्रेशन करने का नहीं किया तो भी कोडिसाइल वैलिड होगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो अमेंडमेंट इन विल इसको कहते हैं कोडिसाइल। विल के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी का विल कर सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। एक ग्वालियर महाराजा थे, ये अपना क्या नाम था इसका, जियाजीराव सिंधिया, उनका 1948 में डेथ हो गया था। वो टाइम उनकी 4 डॉटर थी, एक बेटा था माधवराव सिंधिया और 4 डॉटर थी, विजय राजे सिंधिया और दूसरी विजय राजे उनकी वाइफ थी और वसुंधरा राजे सिंधिया, और ऐसे 4 डॉटर थी, वाइफ थी और बेटा था। चारों बच्चे सब माइनर थे वो टाइम पे। तो विजय राजे सिंधिया मदर थी, शी वाज एक्टिंग एज ए गार्जियन। फिर इंडिया में जब इमरजेंसी आई तो सब पॉलिटिशियन को अंदर कर दिया था इंदिरा गांधी ने। माधवराव सिंधिया वो टाइम इंडिया छोड़ के भाग गए थे। जब वापस इंडिया में आए तो राजीव गांधी के फ्रेंड बन गए और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और उस टाइम पे माँ और बेटे का झगड़ा हो गया, विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया का झगड़ा हुआ। तो विजयराव सिंधिया ने क्या किया, विल बनाया और अपनी 4 बेटियों को दे दिया, माधवराव सिंधिया को एक्सक्लूड कर दिया। माधवराव सिंधिया ने जब बाद में चैलेंज किया तो उन्होंने ये कहा कि महाराजा की एचयूए प्रॉपर्टी थी और एचयूए प्रॉपर्टी का राजमाता को वो सीवा सिंपली गार्जियन, जो हम लोग माइनर थे, जब मैं मेजर हो गया तो करता तो मैं हो गया, और ऐसा भी एचयूए प्रॉपर्टी का विल नहीं हो सकता है। और वो जीत गए बाद में और हिंदू लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एचयू का पार्टीशन करना पड़ा और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे ही एक बिड़ला फैमिली का केस था। कलकत्ता में एक फैमिली रहती थी, बिड़ला जी और उनकी वाइफ थी। हस्बैंड के पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और वाइफ के पास भी 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और उनको बच्चा बच्ची नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, हस्बैंड ने विल बनाया, एवरीथिंग गिवन टू वाइफ। तो वाइफ को हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को मिल गया सब कुछ। तो वाइफ के बाद 13,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। वाइफ का एक लोढ़ा जी करके सीए थे, वो काफी उनके नियर थे, तो वाइफ ने विल बनाया लोढ़ा जी के फेवर में। और लोढ़ा जी को मालूम था कि 13,000 करोड़ का प्रॉपर्टी मिलेगा तो झगड़ा टंडा होने वाला है और बिड़ला लोग फैमिली भी छोड़ेगी नहीं इजीली मेरे को। तो उसने पूरा प्रिकॉशन लिया, विटनेस का साइन लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, विल को रजिस्ट्रेशन में लेके गए, रजिस्ट्रेशन में साइन किया, रास्ते का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, रजिस्ट्रार के उधर भी परमिशन लेके रिकॉर्डिंग कर लिया। और उसके बाद में लेडी की डेथ हो गई। तो लोढ़ा जी ने सब बिड़ला की कंपनियों में शेयर ट्रांसफर के लेटर लिखे। तो बिड़ला जी लोगों ने चैलेंज किया उसको कि हमारे फैमिली में 100 साल से ट्रेडिशन है कि कोई भी भाई का या भाभी का डेथ होता है, उसके बच्चे बच्ची नहीं है कोई भी, तो वो प्रॉपर्टी चैरिटी में जाती है, बिड़ला चैरिटी में, और वो हॉस्पिटल कॉलेज उसमें यूज होती है। तो लोढ़ा जी ने केस किया, बिड़ला जी ने भी केस किया, मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। बड़े बड़े सॉलिसिटरों ने आर्ग्यूमेंट किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उस लेडी की ये पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, हस्बैंड से मिली है, तो उसकी मर्जी है कि उसको चैरिटी करना है या किसको देना है या खुद के पास रखना है कि क्या करना है। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से, और लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लोढ़ा जी को 13,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन लोढ़ा जी के नसीब में भी नहीं थी। वो सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आया, कुछ दिनों में लोढ़ा जी की खुद की डेथ हो गई, फिर उसके दोनों बच्चों को मिली। और आज बॉम्बे हॉस्पिटल और बिड़ला की बहुत सारी कंपनियां उनके लोढ़ा जी के बच्चों के अंडर में आती है। तो कहने का मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी का मैं कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं विल बना के। विल नहीं बनाया, हिंदू लॉ विल अप्लाई। कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है।
आपका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का एसेट का डिस्क्रिप्शन आ जावे, आपका फैमिली मेंबर के नाम आ जावे, तो वो सफिशिएंट है। 2 विटनेस का साइन और पार्टी का खुद का साइन, और एग्जीक्यूटर आप अपॉइंट कर दो। किसको क्या देना है वो लिख लो। विल में जो प्रॉपर्टी मिलती है उसमें कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगता है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी मेरे को मिली और वो मैं बेचूंगा तो मुझे इनकम टैक्स आएगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इनकम टैक्स से कनेक्टेड है। तो मेरी फादर की डेथ हुई थी से 2017 में। मेरे को एक प्रॉपर्टी मिली थी जो मैंने फादर की डेथ के 6 महीने बाद बेच दी थी। वो प्रॉपर्टी मेरे फादर ने 300 रुपए में ली थी 1952 में, जब मेरा जन्म हुआ था। और जब मैंने वो प्रॉपर्टी बेची तो मुझे 3 करोड़ रुपया मिला। अभी हुआ क्या, इनकम टैक्स में तो मेरे लिए शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। तो इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि विल में जब भी कोई आपको चीज मिलती है, तो गिफ्ट में मिलती है या इक्विटी के पार्टीशन में मिलती है, तो पहले वाले ओनर ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो डेट ऑफ एक्विजिशन आपकी गिनी जाएगी, इवन आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तो भी। और उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी। तो मेरे फादर ने 52 में लिया तो मेरा गिना जाएगा, मैंने 52 में लिया। तो मेरे को जब 52 में लिया और बेचा 2018 में आके, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया तो मुझे बेनिफिट मिल जाता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट करो या नया मकान लो या लोअर रेट ऑफ टैक्स करो। जब मेरा ये हो गया तो व्हाट इज माय कॉस्ट, तो फादर ने 300 में ली थी। लेकिन 2001 में लॉ अमेंडमेंट हुआ था कि 2001 के पहले कोई प्रॉपर्टी ली है तो 2001 की मार्केट वैल्यू आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2001 में उसकी वैल्यू थी 20 लाख रुपया, तो इंडेक्सेशन के हिसाब से 3 गुना डिडक्शन मिल जाता है रफली। तो 60 लाख, इवन मेरे फादर ने 300 रुपए में ली थी तो भी मेरा वैल्यू 60 लाख गिना जाएगा। और 3 करोड़ में से 60 लाख मेरा फ्री हो गया। अभी 2 करोड़ 40 लाख रहा। तो मुझे टैक्स भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, तो 2 करोड़ 40 लाख में भर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं भरना है तो मैं 50 लाख बॉन्ड में डाल सकता हूँ और बाकी का री इन्वेस्ट कर सकता हूँ मकान लेने के लिए, अगर मेरे को रहने का मकान नहीं है तो। और एक मकान है तो दूसरा मकान भी ले सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे फादर जिंदा होते थे और फादर को जो जो बेनिफिट इनकम टैक्स से मिलते थे, ऑल विल पास ऑन टू मी ना। इसमें एक और प्रोविजन है कि समझो मेरे फादर ने तो मेरे को दे दिया वो प्लॉट, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरा बॉम्बे में भगवान की दया से बहुत प्रॉपर्टी है, मैं आई एम हैप्पी एंड मेरे को वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और ये प्रॉपर्टी मैं मेरे भाई लोगों को देना चाहता हूँ, तो मैं खाली 200 रुपए का स्टाम्प पेपर पे रिलीज डीड बना सकता हूँ जिसका खाली 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। आई कैन गिव दिस प्रॉपर्टी टू माई मदर और माई ब्रदर और माई सिस्टर, बिकॉज लीगल एयर को मैं दे सकता हूँ, मेरे बाहर फ्रेंड को नहीं दे सकता हूँ, दूसरे रिलेटिव को नहीं दे सकता हूँ। जो मेरे फादर के लीगल एयर से आते हैं उनके फेवर में रिलीज कर सकता हूँ और इसमें कोई भी 200 रुपया स्टाम्प ड्यूटी है, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस है। बहुत बार लेडी जब भी ऑफिस में विल बनाने को आती है तो एक ही सवाल पूछती है कि मेरे पास में ज्वेलरी है, मैं इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरती हूँ और मैंने वेल्थ टैक्स का रिटर्न भी आज तक भरा नहीं है, और मैं विल अगर करके मेरे बेटे को या हस्बैंड को या फ्रेंड को या बहन को दूंगी तो मुझे इनकम टैक्स वाले सवाल पूछेंगे बाद में, तो मैं क्या करूं। जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो एक सर्कुलर लेके आए थे 1994 में कि एक मैरिड वुमन के पास 500 ग्राम तक गोल्ड ऑर्नामेंट है, अनमैरिड के पास 250 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट है और एक मेल के पास 100 ग्राम है, तो इनकम टैक्स वाला कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है। इतना आप आराम से लिख सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मैंने लिख तो दिया बाद में, लेकिन मेरे पास तो 500 ग्राम नहीं है, 1 किलो है। तो लुकिंग टू द स्टेटस ऑफ ए पर्सन आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 500, 250, 100 मिनिमम है। इसमें इनकम टैक्स वाला सवाल नहीं कर सकता है, लेकिन ज्यादा है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कहां से मिला, मदर के बिल से मिला, फादर के बिल से मिला, खरीदा गया, या आपका फाइनेंशियली कैपेसिटी इतना अच्छा है। समझो मेरे प्यून की वाइफ के पास 500 ग्राम रह सकता है तो मेरी वाइफ के पास 1 किलो रह सकता है, और ग्वालियर महाराजा के पास में 5 किलो भी रह सकता है। तो लुकिंग टू द स्टेटस ऑफ ए पर्सन, सो ज्वेलरी वगैरह है तो भी लिख देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर नहीं लिखना है तो खाली ज्वेलरी वर्ड लिख दो विल में तो भी चलेगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक आदमी बोलता है कि मैंने एक फ्लैट खरीदा था आज से 10 साल पहले, 2 करोड़ में फ्लैट लिया था, 1 करोड़ का एग्रीमेंट किया, 1 करोड़ मैंने 2 नंबर में दिया, तो अभी मैं विल में लिखूंगा तो इनकम टैक्स वाला इंक्वायरी चालू करेगा बाद में। पहली बात तो विल चालू लगेगी कभी मंडे के बाद, और अगर आपका डेथ ही होता है पर्टिकुलर से 5 साल बाद, तो आपने 10 साल पहले लिया, 5 साल ये हो गया तो 15 साल हो गया, 15 साल पहले का इनकम टैक्स इंक्वायरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था मिस्टर मुरार का, उसके यहाँ पे एक बार इनकम टैक्स की रेड हो गई। रेड में 50 लाख रुपया हार्ड कैश मिला लॉकर में और 50 लाख रुपए का ज्वेलरी मिला। इनकम टैक्स ने सवाल पूछा, सर इसका क्या सोर्स है? तो मुरारगार साहब ने बोला, सर ये 2 नंबर का है। तो इनकम टैक्स ने बोला 2 नंबर है तो आप टैक्स भरो। उसने बोला मैं टैक्स तो नहीं भरूंगा। तो पूछा गया क्यों नहीं भरेंगे? उसने कहा कि आप इनकम टैक्स वाले 6 साल के पहले का नहीं पूछ सकते, और मैंने ये लॉकर पिछले 8 साल में नहीं खोला है क्योंकि मेरी वाइफ के डेथ के बाद मैंने लॉकर को टच नहीं किया है। तो बैंक ने सर्टिफाई किया कि मिस्टर मुरार का नॉट टच द लॉकर इन लास्ट 8 इयर्स। फिर ज्वेलरी निकाली गई तो उसमें जो न्यूज़पेपर का कटिंग था ज्वेलरी के ऊपर, वो न्यूज़पेपर सब 8 साल जूने थे। वैल्यूएशन रिपोर्ट मिली, वो 8 साल जूनी थी,
और वैल्यूएशन के रिपोर्ट के साथ ज्वेलरी टैली हुई। रिजर्व बैंक ने सर्टिफाई किया करेंसी वाज प्रिंटेड 8 ईयर बैक। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 6 साल पहले ली हुई है तो आप उसमें बिल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इनकम टैक्स का नहीं आएगा। लेकिन अभी अमेंडमेंट 1-2 साल पहले हुआ है कि कई आदमी में रेड आती है, तो और 6 साल के पहले उसे कोई भी एक साल में उसको 50 लाख से ज्यादा कंसीलमेंट मिलता है, तो आईटीओ 6 साल के बदले 10 ईयर रीओपन कर सकता है। किसी का फॉरेन में अकाउंट है, स्विट्जरलैंड में, बहामास में, दुबई में या और दूसरी कंट्री में, तो और 16 साल का पीरियड होता है। लेकिन समझो मेरा फॉरेन में अकाउंट भी नहीं है, मैं रेड का कैंडिडेट भी नहीं हूं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 6 साल के पहले का कुछ भी किया है तो डिपार्टमेंट मेरा टच नहीं कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या? रजिस्ट्रेशन करना एक्चुअली ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, पर करने से एक होगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपकी विटनेस हो गई विल की, और बहुत कभी ओल्ड लेडी होगी, उसका विल बनाएंगे और फ्यूचर में कोई चैलेंज करेगा, तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड विल का एक वजन थोड़ा ज्यादा रहता है। तो रजिस्ट्रार भी उसको पूछता है कि आप विल बना रहे हैं, मर्जी से बना रहे हैं, आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आपको ऐसा डॉक्टर का पेपर साइन नहीं कर रहे हैं कि आपका कुछ, तो वो समझा के तो कर लिया तो अच्छी बात है। कभी आपका विल नहीं मिला तो रजिस्टर्स के उधर से अपन डुप्लीकेट भी ले सकते हैं, और लिटिगेशन में भी रजिस्टर्ड विल का थोड़ा 1% वजन ज्यादा रहेगा। लेकिन लीगली किसी ने रजिस्टर नहीं किया है तो भी चलेगा। किसी ने एक बार विल रजिस्टर कर दिया था, आज मैं चेंज कर रहा हूं और आज वाला विल मैंने रजिस्टर नहीं किया, तो भी लास्ट विल वाला गिना जाएगा, रजिस्टर्ड विल का उसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैंने विल तो कर दिया, रजिस्टर नहीं किया मैंने, और मेरी डेथ हो गई, और मेरे डेथ होने के बाद में सोसाइटी बोलती है विल रजिस्टर्ड नहीं इसलिए मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, तो आदमी का मरने के बाद भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जो आदमी मेरा एग्जीक्यूटर है और जो लोग मेरे बेनिफिशियरी है, वो एक डिक्लेरेशन बनाएंगे और वो रजिस्ट्रार में जाएंगे, विल को उसको इंक्लोज कर देंगे और उसमें वो साइन करेंगे बेनिफिशियरी एंड एग्जीक्यूटर, और मेरा विल रजिस्टर हो सकता है। ये मेरे को भी मालूम नहीं था, अभी 6 महीने पहले ही मेरे को मालूम पड़ा कि आदमी के मरने के बाद भी विल को रजिस्टर किया जा सकता है, ओल्ड विल को, बाय मेकिंग ए डिक्लेरेशन। इसके अलावा प्रोबेट एक सिस्टम होता है बॉम्बे में, पर्टिकुलर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड मद्रास, ये 3 जगह प्रोबेट इंपॉर्टेंट है, बाकी दूसरे इंडिया के दूसरे पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि बहुत बार एक प्रोबेट ऐसा बहुत कॉमन हो गया है कि आप विल बनाते हैं, आप जाएंगे सोसाइटी के पास तो बोले कि प्रोबेट लेके आओ, तो प्रोबेट का अप्लाई करना पड़ता है। पहले अगर लेडी अप्लाई करती थी तो आपको फीस खाली फ्री था, मेल अप्लाई करता था तो 75,000 रुपए फीस भरनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 5-6 साल पहले अमेंडमेंट कर दिया, लेडी करे या जेंट करे, कोई भी एग्जीक्यूटर है, 75,000 रुपए मैक्सिमम फीस है, और प्रॉपर्टियां बहुत कम है तो कम है, लेकिन मैक्सिमम बॉम्बे में तो क्या छोटा सा फ्लैट भी 1 करोड़ में पहुंच जाता है, तो 75,000 रुपए फीस है। 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है, और नॉर्मली हाईकोर्ट नोटिस बोर्ड पे लगाती है 45 डेज के लिए। एडवोकेट भी 50,000 से लाख के बीच में फीस लेते हैं, और 1 साल में आपको प्रोबेट मिल जाता है, 6 महीने से 1 साल के बीच में। लेकिन कोई भी आदमी बीच में उसको चैलेंज कर देगा कि मैं भी लीगल एयर हूं, प्रोबेट गलत है, या कैविएट फाइल कर देगा, तो फिर लॉन्ग लिटिगेशन में चला जाएगा और उसका 20 साल भी एंड होने वाला नहीं है। बंगाल में ये फीस 50,000 रुपए है, चेन्नई में 25,000 है, बाकी प्रोसीजर सेम है। और इंडिया के बाकी पार्ट में या तो फीस बहुत कम है या प्रोबेट उधर इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मेरे फादर के डेथ के बाद हम गए म्युनिसिपलिटी में, हमने लेटर दिया, चारों भाई ने साइन करके हमारा सब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में इजीली ट्रांसफर नहीं होता है। इसके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, नॉमिनेशन भी साथ में फाइल कर देना चाहिए। मैंने मेरी वाइफ को विल भी कर दिया, नॉमिनेशन भी कर दिया, तो मेरा काम पक्का हो गया। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है विल में, कि अगर मेरे बच्चों की एचयूएफ नहीं है बेटे की, तो मैं मेरे विल में उसकी एचयूएफ क्रिएट कर सकता हूं, बोलूंगा एचयूएफ पे इतना पैसा जाएगा। इसके अलावा मेरी डॉटर इन लॉ की कैपिटल नहीं है तो मैं उसके लिए ज्यादा प्रोविजन कर सकता हूं। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की कैपिटल नहीं है, मैं इक्वल अनइक्वल कुछ भी कर सकता हूं। और इसमें मेरे को फैमिली मेंबर को पूछेंगे जरूरत नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेरे ग्रैंडसन को ही दे रहा हूं पूरा। बच्चों के पास बहुत कैपिटल है तो वो भी कर सकता हूं। मैं इसके अंदर ट्रस्ट भी बना सकता हूं, और ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चे लोग बराबर नहीं है, मरने के बाद सब पैसा का पानी कर डालेंगे, तो वो आदमी फैमिली के लिए ट्रस्ट भी बना सकता है। मकान मेंटेन करने का अलग ट्रस्ट बना सकता है, बिजनेस का ट्रस्ट अलग बना सकता है, ट्रस्ट लाइफ टाइम में बना लेगा, घर खर्च के लिए अलग बना सकता है, डॉक्टर के और हैंडीकैप चाइल्ड के लिए बना सकता है। और पहले बना लेवे और विल में ये लिख लेवे कि मेरे मरने के बाद ये ट्रस्ट में इतना रुपया जाएगा, ये ट्रस्ट में इतना रुपया जाएगा, और ट्रस्ट बना हुआ उसमें डायरेक्शन दिए हुए पूरे। इस तरीके से भी आप आगे कर सकते हैं। और नॉमिनेशन सोसाइटी में अपन फाइल करना चाहिए तो प्रोबेट को अवॉइड हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने मेरी वाइफ के फेवर में नॉमिनेशन तो बना दिया, मुझे लगा फ्लैट मेरी वाइफ को मिल जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ मकान बेचती है, मैंने विल नहीं किया, तो मेरी वाइफ अजूम करो वो मकान 6 करोड़ में बेचती है, तो मेरी वाइफ को अगर नॉमिनेशन किया है तो सी इज होल्डिंग एज ए ट्रस्टी, सी इज नॉट द ओनर, तो उसको क्या होगा
खाली 1/3 उसके पास रहेगा, 1/3 बेटे को जाएगा, 1/3 बेटी को जाएगा। लेकिन मैंने नॉमिनेशन के साथ विल भी कर दिया है, तो सी 100% ओनर। तो विल और नॉमिनेशन दोनों अलग अलग चीज है। नॉमिनेशन में आप ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द एसेट, और विल के अंदर आप एसेट दे रहे हैं। चेंज ऑफ नॉमिनेशन अलाउड एवरी टाइम, विल के जैसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अगेन सेम, मैं एचयूएफ का, पार्टनरशिप फर्म का, कंपनी का, ट्रस्ट का मैं नॉमिनेशन नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आई एम ओनली ए ट्रस्टी। और नॉमिनी अगेन कैन नॉट मेक नॉमिनेशन, मैंने नॉमिनी तो बना दिया मेरे वाइफ को, वो अगेन फर्दर नॉमिनेशन नहीं कर सकती है, बिकॉज सी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट टू माय लीगल हेयर। लेकिन मैं विल में भी वाइफ को दिया है, तो सी इज ओनर, देन वो नॉमिनेशन कर सकती है। तो नॉमिनेशन भी आप मैनेजर ही अपॉइंट कर रहे हैं। और आई थिंक फ्रेंड्स टाइम बढ़ते जा रहा है, तो मैं अभी इमीडिएटली डॉक्टर के राइट पे आ जाता हूं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नॉमिनेशन ऑलवेज सोसाइटी में फ्री है, बाकी 5 रुपया देने का है। मेरे को सिंगल नॉमिनी अपॉइंट करना है, फॉर्म नंबर 15A फाइल करना है। मल्टीपल नॉमिनी रखना है तो 15B रखना है। इसके अलावा नॉमिनेशन में और भी कोई पैसा टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज इट इज ए ट्रांसमिशन। विल में भी कोई पैसा आएगा उसका टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स नहीं लगता है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगता है, बिकॉज इट इज नॉट ए ट्रांसफर, इट इज ट्रांसमिशन। मरने के बाद आदमी का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समझो मैंने 4-5 नॉमिनी कर दिए, तो सोसाइटी में वो 5 को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि सोसाइटी में कौन रिप्रेजेंट करेगा, या और आपस में वो कैसे एक को-ओनरशिप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। मैंने अगर ज्यादा बेनिफिशियरी विल में बना दिया है तो। इफ नो नॉमिनेशन फाइल और सोसाइटी आपको जानती है तो उसका भी सर्टेन प्रोसीजर है। सोसाइटी वो प्रोसीजर एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह लेके 2 पेपर में पब्लिक नोटिस देके ट्रांसफर एसेट कर सकती है। अगर मैंने विल बनाया है तो मुझे हाईकोर्ट से प्रोबेट लेना पड़ सकता है। अगर मैंने विल नहीं बनाया है और मेरे पास खाली मूवेबल प्रॉपर्टीज है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर मैंने विल नहीं बनाया और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये तरीके से सर्टेन सिस्टम किए हुए हैं, और ये करीब करीब सबका सिस्टम एक जैसा ही है, प्रोबेट टाइप ही है। बहुत बार अपने को शेयर सर्टिफिकेट, विल तो बन गया, ट्रांसफर के लिए आप जाएंगे सोसाइटी में, आपको सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है, तो आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट भी सोसाइटी से ले सकते हैं। एप्लीकेशन करके इंडेमनिटी बॉन्ड फाइल करने का, 2 पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने का, सोसाइटी जैसे अप्रूव करेगी और आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसके बाद ओरिजिनल मिल गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बार फैमिली मेंबर ओरिजिनल सर्टिफिकेट दबा के बैठ जाते हैं और देते ही नहीं है। तो आप जिसके नाम पे विल में प्रॉपर्टी मिली है वो आदमी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकता है, और ओरिजिनल पेपर का कोई मीनिंग उसमें नहीं रहेगा। विल इज द सुपीरियर डॉक्यूमेंट देन द नॉमिनेशन। इधर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। एक घानेकर करके फैमिली थी विले पार्ले में, उनका बंगलो था जू में, और उसमें क्या था, एक बेटा था, एक बेटी थी। उनका एक फैमिली अरेंजमेंट हो गया था कि घानेकर की डेथ के बाद में घानेकर और उसकी वाइफ को रहने का हक बंगलो में रहेगा टिल डेथ, और उनके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उनके बेटे को चली जाएगी। और बेटी को उन्होंने ऑलरेडी फ्लैट ले लिया था और सर्टेन पैसे का प्रोविजन कर दिया था। अभी हुआ क्या, मिस्टर घानेकर का डेथ हो गया, सोसाइटी में नॉमिनेशन किया हुआ था तो उसकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो गया। वाइफ ने एक वर्धन बिल्डर के साथ सेल करने का एग्रीमेंट कर दिया और सर्टेन टोकन पैसा ले लिया, और वर्धन, और बाद में बेटे को मालूम पड़ा तो बेटे ने माँ के सामने और बिल्डर के सामने केस कर दिया कि भाई ये तो फैमिली सेटलमेंट में प्रॉपर्टी मेरे को मिली हुई है, मेरी माँ को तो खाली रहने का हक है। तो मैटर फाइनली गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइफ टाइम में अगर आपने कुछ कर दिया है, किसको विल कर दिया है और या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, गिफ्ट कर दिया है और कुछ कर दिया लाइफ टाइम में, तो विल तो मरने के दिन लगेगी। और वो फैमिली सेटलमेंट में लाइफ टाइम में ही घानेकर ने अपने बेटे को दे दिया था, सब्जेक्ट टू राइट टू स्टे होल लाइफ। तो उसकी वाइफ का उसमें बेचने का हक नहीं है, रहने का हक है। और फाइनली प्रॉपर्टी उसको, बेटे को आई, और बेटे ने बाद में उस बिल्डर को बेची और माँ को भी थोड़ा पैसा दिया, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था। तो कहने का मतलब क्या है कि विल, अगर आप मरने के दिन आपके पास वो एसेट है तो विल में डिस्ट्रीब्यूट होगी। मेरे मरने के पहले ही मैंने वो बेच दी या और किसी को दे दी या गिफ्ट कर दी, तो दैट विल सुपरसीड द विल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। अभी फ्रेंड्स मैं आ जाता हूं डॉक्टर के राइट पे। डॉक्टर के लिए अपने को 2 चीज समझना जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है 11 अगस्त 2020 को। इसमें क्यों जजमेंट देना पड़ा, क्या कंट्रोवर्सी आई थी? एक्चुअली क्या होता है, आदमी की प्रॉपर्टी में 2 तरह का प्रॉपर्टी होता है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। नाउ एज फार इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज कंसर्न, हिंदू सक्सेशन एक्ट में और इंडियन सक्सेशन एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा है कि विल नहीं है तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर विल है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसके अंदर तो लगेगा नहीं। लेकिन जब एचयूएफ प्रॉपर्टी है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर क्या था, बेटी की, उसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में तो बेटी का हक था, पहले से ही था, अभी भी है।
लेकिन एचयूएफ प्रॉपर्टी में ऐसा था कि बेटी की जब शादी हो जाती है तो सीज टू बी योर मेंबर, और घर में डॉटर इन लॉ आती है तो शी बिकम योर मेंबर। दैट वाज द कंसेप्ट। तो उन्होंने क्या किया, 9 सितंबर 2005 को हिंदू लॉ में अमेंडमेंट हुआ कि डॉटर भी आपकी फैमिली की मेंबर है। समझो मेरी सिस्टर की शादी हो गई है और मेरे फादर की एचयूएफ प्रॉपर्टी है, तो 9 सितंबर 2005 के पहले मेरी सिस्टर का हक नहीं था, उसकी मैरिज हो गई तो। लेकिन 9 सितंबर के बाद लॉ में अमेंडमेंट हो गया कि डॉटर का भी राइट रहेगा। वो राइट आने के बाद कॉम्प्लिकेशन कहां चालू हुआ कि केसेस हो गए बहुत तरह के कि भाई 9 सितंबर 2005 को डॉटर जिंदा होनी चाहिए या फादर जिंदा होना चाहिए तो ही मिलेगा, या फादर की उसके पहले डेथ हो गई है तो नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 9 सितंबर 2005 के पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया एसेट का तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो काफी कंट्रोवर्सी हुई, हंड्रेड्स ऑफ जजमेंट इधर उधर से आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया प्रकाश एंड फुलवती, प्रकाश देवी वर्सेस फुलवती, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जो 2 जजों ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा कि 9 सितंबर का जो अमेंडमेंट हुआ है वो प्रोस्पेक्टिव है। 9 सितंबर के पहले डॉटर की या फादर की किसकी डेथ हो चुकी है और पार्टीशन हो चुका है तो उसका उसमें कोई हक नहीं है। और 9 सितंबर के बाद में या तो डॉटर जन्म लेगी या 9 सितंबर को उसका फादर जिंदा है तो 9 सितंबर के बाद ही एक्ट में लगेगा। तो उसके बाद में वापस कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि भाई 9 सितंबर को बेटी जिंदा थी और उसके बाद पहले डेथ हो गई तो उसके बच्चों का हक रहेगा कि नहीं रहेगा, या डॉटर का जन्म 9 सितंबर के पहले हुआ शादी बाद में हुई तो हक रहेगा कि नहीं रहेगा, 9 सितंबर के पहले उसकी शादी हो चुकी थी तो क्या उसका हक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बहुत कंट्रोवर्सियां पैदा होती गई। तो दूसरा जजमेंट आया 2018 के अंदर और वो जजमेंट था दनम्मा वर्सेस अमर। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों ने किया। उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो खाली प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर के नहीं लगेगा, पास्ट में भी लगेगा। तो अगर किसी की प्रॉपर्टियां है और फादर की डेथ 9 सितंबर के पहले हो चुकी है तो उसका भी इक्वल हक रहेगा उसके अंदर। डॉक्टर की डेथ अगर हो गई है पहले तो भी उसका हक, बच्चों का हक रहेगा। तो अभी कंट्रोवर्सी आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग जजमेंट दे दिया अपने को, तो काफी झगड़े चालू हो गए। तो अभी 11 अगस्त 2020 को जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं तो ये प्रोस्पेक्टिव है, नहीं ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोएक्टिव है। ये तीसरा वर्ड आ गया, रेट्रोएक्टिव। अब रेट्रोएक्टिव क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर डॉक्टर घर में जन्म ली है, 9 सितंबर के पहले जन्म लिया है या 9 सितंबर के बाद में जन्म लिया है, उसकी शादी 9 सितंबर के पहले हुई है या शादी 9 सितंबर के बाद में हुई है, उसके फादर की डेथ 9 सितंबर के पहले हुई है या बाद में हुई है, डॉक्टर का हक है बर्थ से। बिकॉज एचयूएफ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि घर में जो जन्म लेता है वो आपका को पार्टनर है। को पार्टनर मतलब क्या हुआ, वो पार्टीशन का हक मांग सकता है। लेकिन जो बाहर से जो लेडी आती है वो आपकी मेंबर है, सी इज नॉट को पार्टनर। तो अगर समझो मेरी डॉटर इन लॉ बाहर से आई है तो सी इज नॉट द को पार्टनर, सी इज ए मेंबर। अगर मेरा बेटा मैंने उसको मेंटेन नहीं करता है तो सी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम माय एचयूएफ। मेरा बेटा जिंदा है तो ग्रैंडसन का कोई हक ही नहीं है, बट स्टिल ग्रैंडसन इज द को पार्टनर। बेटे की डेथ के बाद वो पिक्चर आ जाएगा, ग्रैंडसन की डेथ के बाद उसका बेटा पिक्चर में आ जाएगा, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा पिक्चर में आ जाएगा। तो ऐसे ये 4 जनरेशन तक एचयूएफ की जनरेशन चलती है। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने वापस लिया कि अगर किसी का पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 के पहले हो गया है, अमेंडमेंट कभी हुआ 9 सितंबर 2005 को, और पार्लियामेंट में कभी पार्लियामेंट ने पास किया, राज्यसभा में इसको प्रोड्यूस किया गया 20/12/2004 को। तो 20/12/2004 के पहले कोई पार्टीशन हो चुका है, लीगल पार्टीशन, लीगल इन द सेंस प्रॉपर डॉक्यूमेंट हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करना चाहिए तो किया है, इनकम टैक्स ने उसका इफेक्ट दिया है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो हुआ है, तो वो वैलिड रहेगा। लेकिन एनी पार्टीशन आफ्टर 2012-2004 विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, और वो प्रॉपर्टी और बेटी का हक रहेगा बिकॉज सी गेट राइट बाय बर्थ। तो उसका कभी भी शादी हुई हो, कभी जन्म हुआ है, जिंदा है, मरी है, कोई रिलेवेंट नहीं है। बाप की कभी डेथ हुई है, कभी मर गई, वो भी रिलेवेंट नहीं है। और उसका तो इसको तीसरा डिसीजन क्या निकाला, रेट्रोस्पेक्टिव भी है, प्रोस्पेक्टिव भी है, बट कट ऑफ डेट क्या रखा 20/12/2004 के पहले वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसका हक नहीं है, तो इसको कहा रेट्रोएक्टिव। सो डॉक्टर का राइट उन्होंने सॉलिड कर दिया कि डॉक्टर का इक्वल राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगेन हिंदू लॉ में 2 प्रॉब्लम आती है, एक तो मिताक्षरा लॉ कहते हैं और दूसरा होता है दाया भाग। अभी दाया भाग कहां चलता है, पर्टिकुलरली गोवा, केरला एंड वेस्ट बंगाल।
मितास्त्र बाकी ऑल ओवर इंडिया। तो मितास्त्र में कर्ता का ज्यादा कोई लंबा चौड़ा हक नहीं है, कर्ता खाली मैनेज करता है, हक सब को पार्टनर्स का है। मेरी एचयूएफ में मैं मैनेज करता हूँ, मेरा बेटा बेटी उनका पूरा हक है। मेरी वाइफ का मेरे एचयूएफ के अंदर सी नॉट को पार्टनर, सी सिंपली है मेंबर, लेकिन मेरा एचयूएफ का जब भी पार्टीशन मिलेगा उसको अपना इक्वल शेयर मिलेगा। तो वो हिसाब से जो वाइफ को पार्टनर नहीं है, पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती है, उसका हक है। और बेटी इज को पार्टनर, सी कैन क्लेम इवन पार्टीशन, सी इज एट पार विद द सन, जो पहले नहीं था और 9 सितंबर 2005 को आया और अलग अलग जजमेंट आने से काफी कॉम्प्लिकेशन पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को जजमेंट दिया कि डॉटर हैव इक्वल राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल। फादर की सेल्फ जनरेटेड इनकम है तो विल के हिसाब से किसको भी दे सकता है, और अगर हिंदू लॉ विल नहीं बनाई तो हिंदू लॉ के हिसाब से मिलेगा, तो भी डॉटर का पूरा हक है, इक्वल हक है उसका। और डॉटर मर गई तो उसके बच्चों का हक है, जमाई का हक नहीं है, लेकिन डॉटर नहीं है तो बच्चों का हक है। समझो डॉटर को बच्चा हुआ ही नहीं और डॉटर की डेथ हो गई तो वो राइट उसका खत्म हो गया, उसके सन इन लॉ को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर काफी मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं ज्यादा बॉदर नहीं करता हूँ, लेकिन आई थिंक डॉक्टर के राइट में ये सफिशिएंट है। कोई क्वेश्चन होगा तो अपन क्लियर कर लेंगे। और 20/12/2004 के पहले पार्टीशन हुआ तो वो वैलिड है, वो एकदम क्लियर कंसेप्ट है और वो पार्टीशन वैलिड होना चाहिए। और अभी मेरे ख्याल से अपन क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और बाद में 5 मिनट पवन भाई मिलेगा। तो मैंने खुद पिछले 12-13 सेमिनार दिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए थे, तो टाइम हुआ तो अपन वो भी कवर कर लेंगे कि उनमें क्या क्वेश्चन थे और क्या आंसर थे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Vimal ji. Thank you very much. It was such a informative, useful and powerful presentation. Thank you, Vimal ji. Thank you very much. Now I request Carlton Ellie to handle the question and answer and make announcement for the Kalbadevi CSTV circle members. Vimal sir, there are Carlton, few please. questions. Yes sir. The first one is, can a husband and wife get the friends to sign as witnesses to the will? Yes, definitely, no problem. Another question is that the Honorable Speaker Shri Vinal Punmiya ji has said that a format of the will has been sent. If it can be sent to us, so then we can also keep it on record. Can you do that favor, sir? Yes sir, yes sir. I'll give it to Pawan bhai. I will send you again sir. Okay, okay. I will circulate. Thank you, Carlton sir. sahab, I will Thank you, circulate. मैंने ये डॉक्टर के राइट पे भी भेजा है पवन भाई को, विल पे भी भेजा है और क्वेश्चन आंसर भी भेजा है। Thank you. Everything will be circulated. Don't Can worry. a will be made part of total property only intentionally? I repeat the question. Can a will be made part of total property only intentionally? If you make a part of the property in a will, मरने के बाद तो all property will be divided. So जो will में नहीं आया होगा, their Hindu law will be applicable. So will is again optional. It is not necessary I must make a will only. So जो portion will, and again I cannot make a half a dozen will. I have to make one will only. That will be last will. Or if I make all property, it will go as per that. I make partly property under the will. The remaining will go as per Hindu law. It is said that the executor should not be a beneficiary of the will. No, sir. Executor, it is advisable to make the beneficiary of the will. So it is better. In case I appoint my wife as executor and I given everything to my wife, it is very easy because she have to collect the property. So executor can be beneficiary. Executor cannot be witness to the will. Or beneficiary should be not, better to avoid beneficiary as witness. But executor and beneficiary is the same person. It is good on the contrary. Thank you, sir. And a few more questions. I am unmarried, staying in my parents' flat. The flat is on my name. No brother, 3 married sisters, but 2 sisters have expired. 1 is alive. All sisters have children. So please advise me, how can I make who that is eligible for the will, a live sister to be given, or can I give it to her son instead of her a dead sister's children in whatever ratio I want to give? That's If he paid for it, he is the owner. He can do whatever he wants. whatever they want. But in case property name of a father, not is his name, then of course all the sister will have equal right. For a property or shares gifted during the lifetime of the owner, whether the recipient will get the benefit of original ownership date.
Sorry, repeat. I've not followed. For a property or shares gifted during the lifetime of the owner, whether the recipient will get the benefit of original ownership date. It has to be. Yes, 100%. 100%. If anything received under the will, anything received under the gift, anything received on the partition of HUF, date of acquisition of earlier owner is my date of acquisition, and cost of earlier owner is my cost. So all long-term benefit will be given and all will be given. If the nomination is given to a minor, then that's all that question is. If give minor, if you given, then better you appointed trustee also there. Otherwise, under the law, who is the trustee? If I made a nomination in favor of my say children, then my wife is there. So she will act as a trustee. And when minor become more than 21 year old, normal to majority come on 18 year. But in these cases, if minor is there and trustee is appointed or trustee is there, natural guardian will be my mother. If I appoint my brother as a trustee, then my brother will be trustee. But if I not appointed, then naturally as per law, person who is a trustee will be trustee. And then my grandson or minor children will get only after attaining age of 21 years. They will not get the asset after 18. They will get after 21. Can I say my daughter-in-law will have no right to my property or income therefrom? Yes, definitely, no problem. You can say, because it is your property, you can do whatever you want. But if you are saying my daughter-in-law will have no right, better to add one more line. Why you are saying like this? She is not helping us. She is not in good term with my son. She adultery का case चल रहा है, divorce का case चल रहा है. Anything, you write one more line to justify that also. Father did not make a will, and then how can we transmit the flat to the son? And what requirements by society to do the transfer? I think you have also mentioned. If father made a nomination, then it will go as per the nomination and property will be divided as per Hindu law. If nomination is also not filed, then make application to the society. This is the death certificate of my father. We are the legal heir. All legal heir will say the declaration. If we are the only heir, no other person is there. Give indemnity bond to the society. Advertisement in 2 newspapers, and society will transfer. There is a prescribed format actually. If there is a nomination, what is the procedure? If no nomination, what is the procedure? And accordingly, it will be transferred. Can you elaborate daughter share as per Muslim law? Muslim law, one can make a will of only 1/3 of the property. If he had not made the will, then whole asset will be divided to wife, male children, and female children. Under the Muslim law, female will get half of the male. Now, for example, I am a Muslim. My wife is no more. Let us assume for 1 second. And I have 2 sons and 2 daughters. Then total there will be 3 parts. Son will get 1/3, second son will get 1/3, daughter will get 1/6, and second daughter will get 1/6. So daughter will get half of the male person. But if person has made a will and he say I am making will under Indian Succession Act, then he can distribute whatever way he wants. What is the difference between will and nomination? I think you have elaborated. Under the will, sir, you are distributing your asset as on the ownership basis. Under the nomination, you are appointing trustee. You divide as per Hindu law. So, for example, I have a flat. I appoint Pawan Bhai as my nominee. Then after my death, work of Pawan Bhai is who is the legal heir of Mr. Punmiya, my wife, my son, my daughter. So Pawan Bhai have to transfer that property to my wife, my son, and my daughter. Pawan Bhai cannot transfer to his children or to himself. He is only as a trustee and not a beneficiary. Can a married person state in a will that in case of divorce, no right to the wife is valid and not changeable by wife? Yes, legally, yes. And here I missed one point actually. Before I made a will, and I made a will when I was not married. After my marriage, my old will come to an end because earlier my parents were my priority. Now my wife is my priority. So that will come to an end and I have to make another will. Now let us make a situation. I made a will today and I've given everything to my wife or my children or whatever. And within 2 years, my divorce take place. Then my will come to an end and I have to make another will because when I made a will, my wife was there. Today there is a divorce. So he have no right. So I can, my will come to an end and I can make another. So divorce and marriage play a very important role as far as will is concerned. If I can't make a will due to income tax, then how to distribute property equally? Property is in the company name. Company is a separate legal entity. So your shares, whatever shares you are having of that company, that will be distributed equally.
and those person may be deemed owner of the asset. Otherwise, they will not become. Well, company is a legal entity. I cannot make a will of my company's property or partnership firm property or trust property or HO property. I can make a will of the shares which I am owning in the company. This is a legal question. Society is not doing the transfer since last 6 years. All compliances have been done as you said, sir. Then what are the next steps? Go to registrar, make a letter to the registrar, complain to registrar. Registrar will call the society person and call this person, understand everything, and registrar will pass the order. If society don't attend, then registrar have power to appoint administrator in the society, and that administrator will do everything. Or society has some problem, they will explain to registrar, and registrar will say comply with this. The person might not have paid the charges, paper may not be in order, there may be already some court order against him or whatever. Request to clarify regarding nominees of shares. Is it covered by company law board, CLB? Nominee of shares, when you file nomination, when you purchase the shares, we give nomination to the company, and there is a normal format. After my death, it will go to so and so person. Or nowadays, normally person by joint name, so second person is already treated as an associate member. Another question: what about tenancy property? About willing? A very good question. Legally, tenancy property cannot be willed because you are their property can come in three ways. You know, first, so you purchase the property, then definitely you are owner. Then you can do whatever you want. Second is the will. You have a share in a cooperative society. Society, again, you are owner of certain shares. So you are holding certain area and you use the property and you are owner. Third system come by way of a tenancy, leave-in license or lease. Now tenancy is a monthly tenancy. In Bombay, whole Kalba Devi, Girgaon, Opera House, Kolaba is tenanted property, majority of that. So tenanted property, what happens? You pay rent of 1 month, automatically next month is renewed. And it goes on and on and on. And up to 90, the tenancy money was also paid under the table, known as a pagri. So that property you cannot make a will. Leave-in license is concerned, it is an individual contact person to person. So after death of a person, leave-in license also come to an end. But lease is normally 99 years, 30 years, 60 years, 999 years. So that remaining portion you can make a will. But tenancy legally you can't make a will. But nowadays what happened? Majority of building going under redevelopment. In Kalbadev area, I have seen at least 100 buildings is going under redevelopment. And all over Bombay, there are more than 2,000 buildings which is going under redevelopment as on today. And Bombay have more than 20,000 buildings which is more than 60, 70 years old. So all due for redevelopment. So under redevelopment, what happened? Tenant get free ownership area. If you are having you get some more area, you get a hardship allowance, which sometimes we run into lakhs and lakhs of rupees. You get society get corpus amount, and you get 2-3 years rent also. So you can write in a will, I am a tenant of so and so property. If building go under redevelopment, then my so and so legal heir will get this property. So even it is under law tenancy, you can't make a will, but it is advisable to write this. If tenanted property go under redevelopment, then whatever right I'm entitled. In my lifetime redevelopment, I will only get it. But after that, it will go to my so and so son. So that son will get the corpus, will get the hardship allowance, will get the rent, will get the new ownership property. So it is advisable to write that. If the property is in joint name and there is no will, if one person expires, then will the property go to the other survivor name? And if there is a will, then will it go to the other persons mentioned in the will? First, if there is no will, then it will, let us say 2 persons are there. Let us say 50-50. Or one may be 75, second may be 25, or whatever percentage. Person who passed away, his share will go to his legal heir because it is joint ownership. For example, I purchased the flat and my wife's name is only added for sake of convenience, and she has not contributed anything, then she is not the co-owner. She is only associate member. And on my death, my son, daughter, all will get equally if there is no will. But for example, my wife contributed 50%, I contributed 50%. My share will go as per my will. My wife's share will go as per her will. Now, let us say I have not made any will. Then Hindu law will come in the picture. So my say 50% belong to me. So 1/3 of 50% will go to my wife, 1/3 will go to my son, or 1/3 will go to my daughter. So my wife 50% remain as it is. So she will be now 50 plus 16%. So she will be 66%. And my son and those will be 16%. There has been a correction in one of the questions. Can a married person state in a will that in case of divorce, no right to the wife is valid,
and not challengeable by divorced wife to claim as maintenance. Actually, what happened? This clause can be written. Yes, in case of a divorce, my wife did not get anything. As the challenge party is concerned, you can write, but you know it is a fundamental right of every citizen. In case of, say, for example, my father made in my favor, even any of my friend can file case against me. My father has adopted him, and you go in court of law, and court will decide. Court will take its own time. Here, I'll give you an example. When Justice Balakrishnan retired, he has given Bombay High Court judges have given him one party, maybe 10 years back, and he said that time, okay, today I'm retiring as Chief Justice of Supreme Court of India, but today I'm going with very heavy heart because as on today, when I'm giving the charge to new judge, I am leaving 3 crore 70 lakh cases pending in various courts: Supreme Court, 22 High Court, Small Causes Court, City Civil Court, Income Tax Tribunal, Custom Tribunal, VAT Tribunal, and various other courts. So he said even today onwards, no new cases admitted, and only those 3.70 crore cases are decided. A normal trend, whatever is there, it will take 330 years. And he said position is not only this much, it is worse. One case is disposed of, 2 are admitted. So litigation should be avoided, but by writing this, problem will be not solved. Still, wife can file a case, litigation can go on. But here nowadays also in my office also I started writing. For example, father said, I have given this much property to my 4 sons, and anyone challenges will not get anything, and his share will distribute it to others. So really, if he challenges, he may succeed later on whatever way, but he will not get anything in my property because that is my wish. So challenge कम हो जाएगा. So wife को भी आप लिखेंगे, but she can still challenge. उसको आप कुछ नहीं कर सकते. But stand may not remain. But time तो खराब हो जाएगा. The children who need more money, they will force to settle with her. If a demat account is joined, then after the death of the first holder, shares will go to the second holder automatically. And similarly, in the case of the second holder, entire shares will be of the first holder? Question. Legally, yes. Legally, as far as demat account is concerned, yes. But under the general law, for example, I am the owner of my account. I added my son's name as a joint owner. He will able to operate as a trustee, but he has to give that asset as per my will to my all legal heir, in which he may be also one of the legal heir. So if will is there, it will go as per will. If will is not there, it will go as per Hindu law. But my son will act as a nominee or as a trustee in that account. He will not become absolute owner under the general law. But if the demat account is concerned, yes, he can do whatever he wants. If an office or flat is tenanted to HUF, it will be permanent right till the HUF continues? Yes, sir. Yes, sir. And after HUF partition also, HUF will decide whose name it is to be transferred. Can a property be in the name of Karta for and on behalf of the HUF? Yes, many societies don't transfer in name of HUF. So Karta or any person of the HUF, by passing a resolution, they can nominate that this person will hold as a trustee, and it can be name of a Karta. But this property will not become personal property of Karta. He will holding on behalf of HUF. In case of tenancy, how is the flat name transferred if the flat is in the name of the mother and the mother has expired without any will? She has 1 daughter and 1 son. Rent receipt is in the name of the mother. Law is, in case of a tenanted property, for example, I am a tenant in certain property. After my death, person who is staying with me, my son or daughter or wife, it will transfer in their name. If property is commercial property, the son who is doing business with me, it will go to him as per the law. But normally, landlord practice where they charge something and then transfer it. In an HUF, 1 person expires, then what will happen to the shares and bank account? If the person expired in HUF, right, sir, property belong to HUF. So automatically, for example, I am a Karta of my HUF, Vimal Punya HUF. After my death, my eldest son will become Karta. Or now after 9 September 2005, eldest person, maybe not, my wife is not a co-person. So eldest daughter or eldest son will become Karta. If eldest is a daughter and she refuses to be Karta, she says, I have my own problem in my in-laws place. Then second person, third person will become Karta. Or family jointly, let us say I am a practicing chartered accountant. I don't want to remain as a Karta because my institute will come in the picture and there are hundreds of restrictions. So in family we can decide
yes, I cannot become karta of HUF, so my son or daughter will be karta of the HUF. So that way it can be distributed, but asset belong to HUF will remain always with HUF. What about shares of a private limited company? Can be distributed under will, or no will, then Hindu law. Sometimes more than one nominee are appointed in case of a flat in a cooperative housing society with different percentage. Why that is done if they are only holding as trustee, and what is the logic of different percentage? Yeah, for example, I have 4 sons and I want to give first son to 50%, remaining son say 30, 10, 10, because the 10, 10 wala is already staking separately somewhere else. So after my death, society will transfer in their name. And for example, I have not made any will, then as per Hindu law, they will get it, all will get equally. If I made a will also in the same proportion, they will get in this proportion. If a lady has purchased a flat out of her money, but for convenience has registered jointly with the daughters, now whether that lady can will it in favor of only one of the daughters? Under the income tax law, person who pay the money is the owner. Under general law, whose name is there, they are the owner. So इसमें बहुत controversy है. So let us assume that the wife has paid everything, daughter name is added for sake of convenience, and wife want to give to that daughter only, then of course there is no problem. Her name is already there. But for example, she wants to give to some other daughter, name of the A, want to give to B, then of course there may be confusion later on, there may be litigation. What happened to old demand of income tax for more than 20 years and no noticed in last 15 years? I think this was quoted. The department can claim tax up to 60 years, 60. Normal loan they get time but within 3 years, but there they get 60 years. Even society dues get time but after 3 years. If society not ask the demand and not file any case within 3 years, after that they cannot file the case also. But as far as income taxes, government dues are concerned, 60 years. Because they remind me a very interesting case. One Parsi gentleman was my client. He was a foreigner. And 10, 15 years back, when person go outside India, they need income tax clearance certificate. So every earlier one retired income tax commissioner was handling this case. Cases come to me. And I went to the department for clearance certificate. Officer said, "Aapka 5,000 something outstanding hai. Aap wo bharo, 5,349. So I informed my client, we paid the money. And we given the certificate. After 1 year, after that also again she wanted to, he or she, husband, wife, both were going abroad. So again we applied for income tax certificate. Same thing, officer said, कि भाई आपका 5,000 something is बाकी है वो भरो. So I've taken a detail and I got कि last time भरा तो है कुछ, इसने credit नहीं दिया होगा. So I've gone through the old file, and last 30 years the man has paid 5,349 at least 18 times. Every time he go, they raise this demand and the person pay. So this time I have taken all 18 challan. I shown him that sir, the 18 time I paid. So one you treat as a payment against this, or 17 का मेरे को refund दो. So one का of course is given credit, certificate was issued. 17 में 8 years was coming within his power. So he has given all amount along with the interest. And earlier 9 years we applied to the Central Board of Direct Taxes, and instead of paying 5,000, we got more than 3 lakh rupee by way of a refund. So department, if real genuine demand is there, it is 60%. Even 2 days back I received one notice for assessment year 95-96. My client is liable to pay 17,000-18,000 rupees. So we gone through the old record, and it was found that when demand was raised, appeal was pending before tribunal. CITPL decided against me. And but after that, tribunal has decided in my favor. ITO had already given effect of that, but still demand was appearing in the register. So we have shown him all the paper. So this time I said, you cancel it, sir. 20 year back ka paper hai, bada mushkil se mila hai. What happens when owner, mother of tenancy home dies without will, and her son also died in 2020? So mother was the tenant of the property? It's a tenanted property. Okay. So who is staying with just now with her? At the time of her death. The question is not clear. So at the time of her death, any legal heir was staying with him, uske naam pe transfer ho jayega. Maybe grandchildren, maybe daughter-in-law, maybe another son, another sister. But if nobody is staying there, lady was alone and she passed away, property will go back to the landlord. If a tenancy shop is rented with landlord's permission and in the name of mother, if mother expires, then there is no will, who will get that property? Tenancy property was given to somebody else on rent. Yes.
And with the so landlord's permission. And the one- property one, was one in has to name see of the mother. permission, whether permission is a blanket permission or permission is for a particular time. If it is a blanket permission, then all legally will get the property. But permission, because tenanted property cannot be transferred like this way, person who was staying there or doing business there can be transferred. But now the landlord is given the permission, that itself is really not valid, but it is landlord's property. He has given permission for 12 years or 10 years or whatever. After that, property may go to the landlord back. Or if landlord transfer in name of somebody legal here, then fine, no problem. Because person who is using as a property, law says it will go to that person. Because tenanted property only for the purpose of use. Leave license is also for the use. You cannot sublet it. But with the consent of tenant, yes, one if it's given, then as per the consent, whenever that period will expire, if they given a blanket permission, then all legal heirs will get it. Well, so at the moment, there are no more further questions coming in. I just have to request the members of, with your permission, Kalba Devi Study Circle, to, many have sent in their names and numbers, but a few have kept it as just iPhone, and then there's a coding system. So I do not know the names. So I request those members to at least send me your membership number and name. You will get the 2 CPRs credit. Over to you, Pawan Sir. Pawan bhai, my request is any person Thank who you. will not ask the question and want to Yeah. ask in next 15 days, they can write to me on my mail. I will reply that. Okay, okay. Thank you, Bimalji. It was mind-boggling, wonderful, so many questions, and you have answered all of them. But still, if anybody has a question, they can send to me or Carlton or Bimalji directly. We will see that you get proper answer, definitely. And about the notes which Bimalji has given, I will definitely circulate. Friends, I take this opportunity to welcome all the district dignitaries who are present here. I will not take name because there's so many, but I will take name of 2 dignitaries. One is the Lion K. Mudassir from our neighboring district. He is the Vice District Governor of A3. I welcome Sir Mudassir Saab, welcome. And I also welcome our immediate past District Governor, Lion Kamlesh Dalal, for participating in this webinar. Kamlesh Bhai, welcome. Thank you very much. Now, I request our Principal District Cabinet Secretary, Lion Sushil Ji, to propose a well-deserved vote of thanks. And before that, Rajkumar Ji, if any final word, sorry, Sushil Ji, I have one more task to perform. I will request our second Vice District Governor, Sanjay Churi Ji, to give his observation in brief. Sanjay Ji, you are there? Sanjay Ji, please unmute. I have. Hello. Yeah, Sanjay Ji, we can hear. Yeah, you're unmuted. Okay, thank you. Yeah, good afternoon, presiding officer and line leaders. Pawan ji, I'm really grateful that kind of initiative you have taken, and you have called our own past president, and we got the opportunity to meet Vimal ji after so many years, nearly after 15 years, and the way in detail, in depth, he has given us knowledge, and we're truly encouraged. Many people, they have got those queries, पर ये समझते नहीं किसको पूछने जाओ, कहाँ पे जाना है, ठीक है मेरी तो जिंदगी और लंबी है, बाद में कर देंगे, तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो वो चलता ही रहता है और वो उसका कोई अंत नहीं होता है. आज विमल जी ने हमको साउंड कर दिया है कि what are the advantages of it, and if you don't do it, what are the disadvantages of it. So वो जो भी precautions लेनी है, so we'll be definitely taking. Whenever any advice is required, we'll approach you and Vimal ji, and keep having this kind of webinars regularly. I'm 100% sure that हमने देखा है कि भाई भाई वो माँ और बेटे इतने प्यार से सालों साल रहते हैं, और वो जो करता है उसकी डेथ के बाद वो कहाँ मिलते हैं, तो कोर्ट में. तो that hurts
इमेंसली। तो कम से कम ये अगर सब ये फॉर्मेलिटी अगर प्रॉपर कर देता है तो एटलीस्ट उसकी लेगेसी जो है वो कैरी आउट हो जाएगी, वो उनकी फैमिली उसी प्यार से एक साथ वो रहना चालू कर देगी। सो दैट इज a real advantage of it, and I'm really grateful once again, and thanks once again Vimalji and Pawanji. I'm really truly once again grateful. Thank you. Thank you, Sanjay ji. Thank you very much. Now I request our first Vice District Governor, Lion Prasad ji Panwalkar, to give his observation. Prasad ji, please. Yeah, good afternoon, everybody. First of all, let me compliment Vimal Punmiya ji. Sir, you have really, in a बहुत सारे सरल शब्दों में, in a very simple language, you have explained us the intricacies about the wills as well as about rights of daughter. Both the things you are a knowledgeable person, you are an authority on this particular subject, and very forcefully and very clear way you have given this presentation. We are really thankful to you. Though we are all educated, but many times, we don't understand the intricacies, what are the legalities, what are the rights, and very in a simple language you have explained that. And I think today, most of our lions, they are senior citizens. And I am not sure they are all wealthy. Let me tell you, they are all wealthy. And I'm not sure whether all of them, they have made their will or not. But certainly after listening to your presentation and understanding the importance of this particular subject, all of them, they will rush to you, they will come to you to make their will. And that is what is required. And really compliments to Pawanji Agarwal. Pawanji, you are खाली region chairman नहीं हो. You are not only person from a finance or a chartered accountant or arbitrator, but you are touching upon many subjects which are of the common interest to each and every lion, those who are here and all others. And really hats off to you. You are organizing very well. And really today's presentation, Vimalji, thank you very much for giving us this particular information. Thank you, Pawanji. And I hope that you will continue this particular work of inviting us and also organizing such type of very educative and informative seminars for all of us virtually. Thank you. Definitely, Prasad ji, thank you very much. Now, the final word from our Honorable District Governor, Rajkumar ji Gupta. सर जी, सुबह से हो गई शाम, अभी दोपहर हो गई है, क्योंकि हम लोग सुबह 11 बजे के पहले शुरू हुए थे। और अभी जैसे मैंने कहा कि नाश्ता मैंने भिजवा दिया था, लोगों ने खा लिया, अभी लंच का टाइम हो गया है। तो अभी खैर एनीवे, लंच के पहले एक जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत लोगों को ज्ञान मुफ्त में मिला। ये मुफ्त में इसलिए मिला बिकॉज दे आर लायंस। सो दिस इज लायन मूवमेंट में आप जुड़ने से और जुड़ाने से बहुत फर्क पड़ता है। Or this is not one topic. We are now touching all topics which are related to our lives. You see, this is what we are doing in this pandemic. आज हम लोगों ने 34वां सेमिनार किया, 30 किया या 20 किया, मगर लोगों को इतना कुछ सीखने को मिला। हम लोग तो ये सोचते थे स्कूल और कॉलेज कर लिया तो बहुत कुछ हो गया सर, बाकी अभी कमाओ और खाओ और मजा करो। मगर मजा करने के साथ साथ ये जो चीजें बहुत जरूरी थी, ये मैंने जैसे शुरू से कहा कि अभी एक्शन की जरूरत है। आज हर काम सोचने से काम नहीं होता है, कुछ काम करने से होता है। तो आई वुड अगेन रिपीट व्हाट आई स्टार्टेड विद कि now after going through all this learning and having knowledge of so much, please go in for whatever we have discussed today, and this is really going to help us. पवन जी, आपका बहुत बहुत आभार। विमल जी, we really had a very nice time. कोई भी हिलने को तैयार नहीं है। वो बोलते थे और भी कुछ बात होगी तो मेरे को बता देना। अरे भैया, दौलत जमा करो फिर मेरे पास आओ, मैं रास्ता बताऊंगा। विमल जी सब रास्ते हैं, सब चीजें समझ जाती है, खाली एक्शन लेना जरूरी है। तो इट्स माय रिक्वेस्ट and thank you very much, Punya ji. You really hit the nail. Thank you, sir. Where it was required, and we really are looking forward for such type of webinars in various different fields, and positively we'll have a lot more to learn. और भी कोई फील्ड में अगर आप कुछ हमारे को ज्ञान दे सको, हमारे लायंस को बता सको, तो जरूर बताइए। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। Thank you very much, sir. Thank you, Rajkumar ji. Thank you very much. Under your leadership, we will definitely organize many more such seminars. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Sushil ji to propose a well-deserved vote of thanks. Sushil ji, please.
You are unmuted, or I should? Sushil ji, unmute yourself. One second, only one second. Yeah, Sushil ji, please. Yes, now it's good. Yeah. Presiding officer, our region chairperson, Lion Pavan Agarwal ji, and my dear friends, Namaste. Thank you, Pavan ji, for giving me this opportunity to present vote of thanks. We have learned a lot from today's webinar on wills, nomination, and rights of daughters. I, as District Cabinet Secretary, Lion Dr. Sushil Punyani, have pleasure to express gratitude. We extend our gratitude to District Governor Lion Rajkumar Gupta for gracing this seminar as a chief guest and for your encouragement. We also thank Governor for sending us very delicious breakfast. Thank you, Governor. It is our honor and pleasure to thank guest speaker, CA Vimal Punyamia, convener of Kalba Devi CA Study Circle. Sir, your speech was very informative, exhaustive, and meaningful. Thank you for being with us and sharing your invaluable time and thoughts. Special thank goes to conveners of Kalba Devi CA Study Circle, CA Kashmira Debu, CA Kapil Doshi, CA Carl Elip for being the part of today's program. A big thank goes to first YCC Governor, Lion Prasad Panwalkar, second YCC Governor, Lion Sanjay Churi for their observations. I also thank first YCC Governor of District 3231A3, Dr. Mudassir, for your participation. I also extend our gratitude to Kamlesh Dalal for his gracious presence. We appreciate and applaud Region Chairperson Lion Pavan Agarwal for planning and giving shape to today's webinar. He has worked hard for the success of today's program. Actually, you have selected a very important topic for the webinar. Thank you. I also thank Firoza Sen for introducing guest speaker. I'm thankful to all Lions, Lionesses, Leos, friends for your great participation. Because of you, this program is a highly successful. All of you, please join in for lunch at the convenience of your home. Thank you. Wishing you happy Navratri and happy Dashera. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sushil ji. Thank you very much. Thank Happy you, Bimal Dashera to ji. each and everyone. Yeah. Same to you. Same to you. Thank you, Bimal ji. Such a Thank you, nice, sir. Thank you. wonderful program. Once again, sir. Pawan ji, congratulations. Thank you, Prasad ji. Thank you. Pawan ji and everyone, balle balle. Let's hear the word balle balle. Yes. Yes. Well, thank you. Thank you. Can I end the meeting, sir? Yes, yes, yes. Very well. Thank you.